recording of the session. Okay, now please help me. Shamsher or Ashish, what is a supervised algorithm? where the label values are known. The destination variables values are known, where Yes, we use when our super. data is already labeled, when we have kind of a problem, okay, and we already know what we are going to predict, and the data is already given to us in the same format. Let's say we are taking a very simple example of house pricing. Okay, for house pricing, what is my target? Target value is my price. I want to predict the price of the house. So that price should already be given me into the training data, or the data that is available to me. The price that is already given me for all the data that is available for me to make a model. Okay, so I already know what I'm going to predict. So when my data is already given me in such a format, the target value is already given me in the data. So that data is called the label data. Let's say for house pricing, I will collect the data that is price, that is your area, that is your floor, and let's say this is your age of house, and let's say this is your BHK, 2 BHK or 3 BHK. So that data is already giving me in this format. Okay, and price is already given me in the data. Let's say this is 25 lakhs, area is let's say 1000 square feet, and the floor is let's say fifth, age is let's say 4-year-old, and is let's say 2 BHK. So data is given me in all the formats. Let's say I am having 10 millions of record, or let's say not 10 million, let's say I have only 1 millions of records. So in that case, this price section is already given to me, and I am going to predict this price only. So that type of data is called the label data. So my linear regression problem is a supervised problem. Okay, this is first thing, and second is my regression problem. Regression means that whatever I am going to predict through my model, it is actually a continuous variable. That means the value of my target variable could be anything. It could be any real value, minus infinity to plus infinity. Okay, so I don't have any foundation. It could be any real number. Okay, so in case of, if we think of hypothetically about my house pricing, so it could be anything from 0 to my infinity. It all entirely depends what kind of area and what location, what city. It is a prime location, so it vary from location to location. But practically we don't have any limit on the price of the house. So in that case, when I don't have any limitation on my price or my target variable, then it is a continuous variable. So in linear regression, we have supervised algorithm, and the type of problem is a regression problem. Okay, so we are very well aware that what we are going to predict, we are going to predict a continuous variable. So we'll start with an example. So when we start with the machine learning or data sciences, so our very first step is to collect the data. Okay, so data may be collected, let's say you are working from the house pricing, so you may be collecting data from the government, you may be collecting by data from the survey, or there could be any different mechanism. So finally, you will be having the data in such a format, and you will be giving the price or area, floor, age, 2 BHK. There could be a number of parameters that actually affect your house price. It may be whether your house is park facing or not, okay, whether it is a prime location or not, what is the distance from the metro station. Okay, so it could be any number of variables. So it entirely depends on what kind, how much and what kind of data is available to me, okay, and what are the important factor. So I will try to capture all and every parameters which are actually affecting my house pricing. So if I am going to miss any of the parameters, so actually that is I am going to miss something in the prediction, because that may be an important parameter, but I have not collected that parameter in my collection of the data. So collection of data is very important when we are going to have the data to create my model. Okay, so the first part is collection of the data. Let's say, for example, we have collected the data, and let's say I have the 1 million records of the data,
and let's say this data is coming from the, let's say for NCR, from different location, from different localities, from different apartments, different societies. Okay. Now the second part comes how I'm going to use this data to make my model. I have the data available to me and it is given the RDMS format. Okay, when I am having the target value, what I am going to predict, that is my price. And these are all the parameters which are going to affect my house prices. So these, all the parameters are called in machine learning language, they are called predictors. Okay, so area, floor, age, and BHK, these are my predictors, and price is my target value. So what is my ultimate purpose? I want just to build a model, a predictive model, okay, in which case this data is already given to me. Okay, this is my input data. Okay, I will build a machine learning model. Okay, I will train it, test it, and finally I deploy it. Okay, now this is I have a machine learning model. Then a new data actually comes to me. Okay, new data, let me maybe coming from the any let's say for anything. Let's say I have deployed this model on my website, let's say 99acre.com. So let's say any people come and he just want to know, let's say if I'm going for this particular locality and this floor, and let's say age of the house is, let's say, 2-year old. So what would be the approximate price for my house, so that he will have some idea how much it would be costing him. Okay, so let's say, and on website, this is my website. Okay, I am going to fill all this data. I will fill area कि मुझे area कितना चाहिए. I will fill the floor. I will fill the age, 2 BHK or 3 BHK. So I will fill all the parameters. Okay, that data is going to fill in my machine learning model. Okay, and it is finally going to predict my price, house of the price. Okay, so it will give the customer that is coming to my website, it will give me a clear picture or more or less approximate idea how much it is going to cost, what kind, the kind of property actually he's looking for. So that is actually the real-time examples of the linear regression. So if you go for the 99acre.com, so actually it is present over there. Let me show it to you. Mm. So if you go to 99acre.com, so it will show you the, I don't know, it was earlier, it was there, house predictor. Price estimator. So this is the price estimator. This is basically a machine learning model that is going to predict the price of your house. You will go, you will check the what is the property type, what is the number of bedrooms, super area, total floors, floor number, covered parking चाहिए नहीं चाहिए आपको, open parking चाहिए नहीं चाहिए. So इस तरह के बहुत सारे parameters आप अपने machine learning model के हिसाब से बना सकते हो. You are going to fill all these values. They're actually going through the machine learning model, and it is going to predict your, let's say if I am taking number of bedrooms, I have selected, let's say 2, age of square feet, let's say I have taken 1240, total floor, let's say I have taken 20, and floor number I have, let's say, third floor. Okay, covered parking, let's say 2, open parking, let's say no, and calculate the price. This is not working, I don't know why. Okay, maybe the site is down or something. So this is how it works. So this is real-time examples, and on majority of the website, where is a booking.com or 99acre.com or other different sites, you can see a live examples for the house price prediction. So this is the same thing. We will take an example of that. Okay, so we have collected the data. Now we are going to use this data for the machine learning prediction model for house pricing. Okay, so now I have the data. Now I am going to use this data. So the linear regression, it is implicit in the definition of this, that is something related to a line. Line, what is the equation of a line? It is y equal to mx plus c. If I am considering with a 2 dimension, it is a equation of a line. Okay, and it is something like this. This is your x-axis and this is your y-axis, and let's say
This is called your interceptor, that is your C. Okay, and this is actually the slope of the line is actually your M. Okay, so this is a equation of line. So now a linear regression, when I am saying I am going to build a linear regression model, so it simply means that my data that is available to me, actually this data is regressed around a line, and I am going to make a linear regression model that would is more or less look like a line. So let's for example, when I'm saying I am going to make a model, so in the very first class we have understood that model is nothing but a mathematical relationship between target and predictors. सो मॉडल का मतलब कोई एक मॉडल कोई अजीब चीज नहीं है कि बहुत एलियन तरीके से आई है. मॉडल एक बहुत ही सिंपल मैथमेटिकल रिलेशनशिप होता है or a mathematical function that actually gives me the relationship between the target value and all the predictors. So for let's say example, I will take only this thing, price and area. As of now, I will concentrating and focusing only on the target variable price and the predictor area. So जैसे जैसे आपका एरिया बढ़ता है आपका प्राइस इंक्रीज होता चला जाता है, दैट इज वेरी वेल नोन. ओके, सो लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको एक आपके टू डायमेंशन में अगर मैं इसको प्लॉट करूं, दिस इज माय एरिया and this is my price. So if this is area, let's say 1000 square feet अगर आपका area है तो let's say आपका price है, let's say price is around this is 25 lakhs. Okay, let's say if I am having 2000 square feet, let's say it is having around 60 lakhs, not 60 lakhs, let's say this is 60 lakhs यहाँ पर आएगा कहीं, let's say this is 60 lakhs around. Okay, ये आपका 25 लैक्स, अगर आपका लेट्स से 1200 है तो लेट्स से आपका एरिया आपका 30 लैक्स के आसपास है. सो आई कैन पुट ऑल द रियल टाइम डेटा हियर. Okay, so this is my real time data that is available to me. I have put the area and I have put the corresponding prices. Okay, so I have plot all my data in the two dimension. This is my area, this is my price. So if you can see the pattern over here, when area is increasing, the price is actually increasing. So we have more or less a linear relationship, means when area is increasing, price increasing, we have a kind of collinearity, that is called co-relationship. So in that case, I can see the pattern, but actually it is not the perfect linear relationship. If it would have been a perfect relationship, then all the data should be on single line. Let's say I have the relationship something like that, area, not area. Let's say I have a relation something like that. Your price, house price, is equal to let's say 10 lakh multiplied by your area. Okay, let's say your area is not 10 lakhs से बहुत ज़्यादा हो जाएगा. So we'll take it 1000 or something. Okay, we'll take it 1000. 1000, or let's say your base price is your 5 lakh. Let's say this is kind of equation that is given to me. So let's say अगर मेरा area जो है वो मेरा let's say 1000 square feet है, so मेरा ये हो गया 1000 into 1000 plus 5 lakh. So मेरा price कितना आएगा? My price would be 10 lakhs plus 5 lakh, it is 15 lakh. सो अगर इस तरह का कोई फॉर्मूला मुझे ऑलरेडी दिया हुआ है बाय द गवर्नमेंट, सो इररिस्पेक्टिव कि उसकी लोकेशन क्या है, उसका कुछ क्या है, सो कोई उससे फर्क नहीं पड़ता. ये डायरेक्ट फॉर्मूला गवर्नमेंट ने मुझे दिया है. वो अगर कहीं भी आपका एरिया आप एरिया फॉर्मूले में रखो तो आपको उसका प्राइस मिल जाएगा. सो अगर ये केस मेरे साथ होता, ये रिलेशनशिप ऑलरेडी मुझे दिया हुआ होता गवर्नमेंट की तरफ से रेगुलेशन में, सो ऑल द पॉइंट्स सारे के सारे जो हाउस प्राइसिंग के जो पॉइंट्स हैं वो बेसिकली अगर मैं ग्राफ में डॉट करूँ तो मुझे एक लाइन पे मिलते हैं, बिकॉज दे आर following this relationship. Okay, so they, because it is equation of a line where this is your area and this is your price and this actually this is equation of a line. So आपके सारे के सारे पॉइंट आपके इस लाइन पे आते हैं, सारे के सारे हाउस प्राइसिंग आपके इस लाइन पे आ जाती है.
तो दैट इज अ परफेक्ट रिलेशनशिप कि मैं एरिया को इंक्रीज कर रहा हूँ, प्राइस आपका इंक्रीज होता जा रहा है, एंड इट इज गवर्न बाय दिस लीनियर रिलेशनशिप। लेकिन एग्जैक्टली में ऐसा नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ने ऐसा कोई फॉर्मूला मुझको नहीं दिया है। ओके ओके, बिकॉज योर हाउस प्राइस डिपेंड्स ऑन ए लॉट ऑफ थिंग्स। लेट्स कि आपका बिल्डर कौन सा है, आपके जो आप बिल्डअप कर रहे हो उसकी क्वालिटी कैसी है, आप किस लोकेशन में रहते हो, प्राइम लोकेशन है कि नहीं है, राइट, आप किस तरह का मटेरियल आप यूज कर रहे हो। सो देयर इज अ लॉट ऑफ फैक्टर्स गवर्न which are governing your prices. So in that case, so all the points actually will not belong on this single line. पैटर्न है कि एरिया बढ़ रहा है तो प्राइस आपका बढ़ रहा है, बट एक्चुअली दैट इज नॉट अ परफेक्ट लीनियर रिलेशनशिप, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर उसको वरी कर रहे हैं। सो आपको जो एक्चुअल डाटा एक्चुअली में दिखाई देगा, वो आपका एक्चुअल डाटा आपका मोरलेस इस तरीके से दिखाई देगा जो मैंने ये प्लॉट ड्रॉ किया है। इस केस में आपका लीनियर रिलेशनशिप है लेकिन परफेक्ट नहीं है। सो अब मुझे क्या करना है, मुझे गवर्नमेंट वाला काम करना है। आई हैव टू डू द रिवर्स इंजीनियरिंग और मुझे रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है। आई हैव टू फाइंड दिस रिलेशनशिप एक्चुअली, एंड दिस रिलेशनशिप इज एक्चुअली माय मशीन लर्निंग मॉडल। क्योंकि अगर मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मुझे 1000 फाइंड आउट करना है, मुझे 5 लाख फाइंड आउट करना है। ये दो चीजें मुझे फाइंड आउट करनी है। अगर मैं इसको कंपेयर करूं y इक्वल टू mx प्लस c से, तो दिस इज एक्चुअली m एंड दिस इज एक्चुअली c। सो मुझे इस लाइन इक्वेशन में मुझे m और c फाइंड आउट करना है। अगर मैंने m और c फाइंड आउट कर लिए, सो नाउ आई हैव ए मशीन लर्निंग मॉडल। जब भी कोई नई डाटा आएगा जिसमें मुझे एरिया दिया हुआ होगा, आई विल जस्ट पुट दैट एरिया इन दिस इक्वेशन एंड आई विल हैव द प्राइस। सो माय लाइफ इज वेरी सिंपल। I have to find out that linear relationship between the target and the predictors. वो relationship मुझे मिल गया, my job is done. That is actually machine learning model, and that is I am going to deploy in the production. Okay, यहाँ तक ऐसी कोई चीजें समझ में नहीं आई है। So we are good. I think this is more of a repetition of our initial classes. Yes, so वो एक्चुअली कुछ लोगों ने नया ज्वाइन किया है, तो उसको हम 1 घंटे में कवर करके देन विल गो डाउन, ठीक है ना? Sure. Okay. Okay. So anything else? So दीपक कह रहे हैं कि समझ में नहीं आया है, तो दीपक एक्चुअली द एम फैक्टर, एम बेसिकली अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, दिस इज एम फैक्टर। मेरी इक्वेशन ऑफ लाइन है y इक्वल टू mx प्लस c। x मेरा क्या है, x व्हाट इज x हेयर। अगर x मैंने यहाँ पर क्या लिया है, x मैंने लिया एक्चुअली एरिया, एंड c इज माई बेस प्राइस। मेरे हाउस का बेस प्राइस आपका एक मिनिमम बेस प्राइस आपका रहेगा। उसके बाद फिर आपका जैसे जैसे एरिया इंक्रीज होगा उसके हिसाब से आपका प्राइस भी इंक्रीज होता जाएगा। सो दिस इज बेसिकली दिस इज अ पैरामीटर, a coefficient that is multiplied by your area and it will give you the final price. So m actually आपका प्राइस से मल्टीप्लाई होता है। तो ये m मुझे फाइंड आउट करना है। अगर ये m मैंने एग्जैक्टली सही फाइंड आउट कर लिया तो मैं प्राइस इसमें एरिया जब भी रखूंगा मुझे प्राइस मिल जाएगा। सो अगर मैं इसको ज्योमेट्रिकली देखूं तो एक्चुअली लाइन का स्लोप है। ओके, दिस इज स्लोप ऑफ द लाइन। ओके, एंड दिस इज c, दिस इज द बेस वैल्यू। और मैं अगर इसको मशीन लर्निंग के टर्म में सोचूं तो व्हाट इज m? m बेसिकली मुझे बताता है मशीन लर्निंग के टर्म में कि बेसिकली प्राइस को प्रेडिक्ट करने के लिए एरिया का कितना इंपॉर्टेंस है, राइट? कि अगर ये वैल्यू मेरी ज्यादा होती चली जाएगी, इसका मतलब प्राइस को प्रेडिक्ट करने के लिए एरिया की इंपॉर्टेंस उतनी ज्यादा है। अगर ये वैल्यू कम होती चली जाएगी, इसका मतलब प्राइस को प्रेडिक्ट करने में एरिया की जो वेटेज है वो बहुत कम है। सो एक्चुअली दिस इज अ फीचर वेटेज कि मैं जब प्रेडिक्ट करने के लिए जाऊंगा तो उसका कितनी इंपॉर्टेंस होगी। जैसे अगर आप देखोगे तो फ्लोर की या 2 BHK की या एज की, इन सब का आपका बहुत ज्यादा फैक्टर होता है, लेकिन सबसे ज्यादा फैक्टर आपका एरिया का होता है कि आपका एरिया कितना ज्यादा है। तो जब भी मैं एरिया के लिए वेटेज कैलकुलेट करने के लिए जाऊंगा तो मेरे लिए सबसे ज्यादा कैलकुलेट होगा। फ्लोर के लिए भी होगा लेकिन कम होगा, एज के लिए भी कम होगा, BH के लिए भी कम होगा, लेकिन सबसे ज्यादा आपका एरिया के लिए होगा। सो दिस m इज एक्चुअली योर इम्पोर्टेंस ऑफ योर फीचर और योर प्रेडिक्टर, कि बेसिकली आपकी जो फीचर है ये कितनी इंपॉर्टेंट है प्राइस को प्रेडिक्ट करने के लिए। ओके, सो यहां तक ठीक है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट थिंग। ओके, सो नाउ मेरे पास ये लाइन की क्वेश्चन मेरे पास है। ओके, मुझे ये एक्चुअल डाटा पॉइंट्स मुझे दिए हुए हैं डेटा के, एंड आई कैन सी द पैटर्न कि इसमें एक लीनियर रिलेशनशिप है। अब मुझे एक लाइन फाइंड आउट करनी है जो कि इस रिलेशनशिप को एक्सप्लेन कर सके।
यानी बेटर तरीके से रिप्रेजेंट कर सके। लेट्स से अगर मैं एक लाइन मैंने ये खींची, दिस इज माय एरिया and this is my price. So let's say I put this line first, and let's say this line, this is line A and this is line B. So which one is the better line, which is representing the relationship between area and price in a better sense? Which one is the better line, A or B? Pankaj, which one is better line, A. A or B? A. A is better line because A जो line है बेसिकली आपके सारे पॉइंट्स के नजदीक है। सो ये बेसिकली बेटर रिप्रेजेंट कर रही है आपके एरिया और प्राइस के रिलेशनशिप को। सो एग्जैक्टली यही मेरा पर्पस है, मुझे वो लाइन फाइंड आउट करनी है जो बेसिकली बेस्ट फिट लाइन हो। बेस्ट फिट लाइन का मतलब जो बेसिकली इस रिलेशनशिप को सबसे अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाए। दैट मीन्स वो लाइन जो सारे पॉइंट्स के मोर और लेस सबसे नजदीक से होके जाए। तो अगर आप इस पॉइंट को देखोगे तो इस पॉइंट से सारे लाइन पॉइंट्स बहुत ज्यादा दूर है, ये इन सबकी फिर भी नजदीक है। इसका मतलब बेसिकली ये मोर लेस इसको सही तरह से रिप्रेजेंट करती है। अगर मैं इन्हीं दोनों की बात करूं तो ये वाला पॉइंट अगर हम देखें, ये वाला एक्चुअल डेटा जो मुझे दिया हुआ है, ठीक है, इसके लिए लेट से एरिया फॉर एन एग्जांपल, इसका एरिया लेट से 1000 स्क्वायर फीट है और इसका प्राइस जो है लेट से 25 लाख है। तो एक्चुअल डेटा मुझे दिया हुआ है कि अगर एरिया 1000 है तो प्राइस उसका 25 लाख है। अगर मैं इसको अपनी लाइन मानता हूं, अगर मैं इसको अपना बेस मॉडल मान के चलता हूं, तो उसके हिसाब से ये क्या प्रेडिक्ट कर रहा है, ये प्रेडिक्ट कर रहा है उसका प्राइस ऑलमोस्ट आपका लेट से 50 लाख। तो यानी कि मेरे पास 25 लाख का प्राइस गलत प्रेडिक्ट कर रहा है। 25 लाख में चाहिए उसको 50 लाख प्रेडिक्ट कर रहा है। इसका मतलब ऑलमोस्ट 100% का डिफरेंस है। यानी कि ये मेरे लिए अगर मैं इसको अपना मॉडल मान के चलता हूँ तो मेरा मॉडल इसको 100% मोर और लेस 100% गलत प्रेडिक्ट कर रहा है। इस वाले डेटा पॉइंट के लेके चलता हूँ तो लेट्स से इस वाले डेटा पॉइंट का प्राइस एक्चुअली में कितना होना चाहिए था, 55 लाख फॉर एन एग्जांपल, और प्रेडिक्ट कितना कर रहा है ये इसका प्रेडिक्शन है। ये कर रहा है इसको लगभग आपका 70 लाख। तो यहाँ पर आपका 15 लाख का डिफरेंस है। सो मेरा बेस्ट मॉडल कौन सा होगा? मेरा बेस्ट मॉडल या बेस्ट लाइन मेरी वो होगी जिसके लिए बेसिकली ईच एंड एवरी पॉइंट पे जो मेरी एरर आ रही है मॉडल में वो मेरी मिनिमम हो जाए। ये मेरी ईच एंड एवरी पॉइंट्स के लिए एरर आ गई अगर मैं इसको बेस मॉडल मान के चलता हूँ तो। सो मेरा बेस्ट मॉडल वो होगा क्योंकि अगर ये वाले पॉइंट देखो तो एरर बिल्कुल जीरो है, यानी जितना प्रेडिक्शन है, जितना एक्चुअल वैल्यू उतना प्रेडिक्ट कर रहा है, क्योंकि ये लाइन मेरा जो है वो मॉडल है। ये वाला एक्चुअली जीरो है लेकिन इसके लिए एरर मेरी है, इसके लिए एरर है, इसके लिए एरर है। सो एक्चुअली में मुझे वो लाइन फाइंड आउट करनी है ज्योमेट्रिकली जिसके लिए मेरा बेसिकली एरर जो है मेरी जीरो तो हो नहीं पाएगी, मिनिमम हो जाए। ओके, क्योंकि अगर मैं ए इस लाइन के लिए निकालूंगा तो ये एरर मेरी ज्यादा आएगी क्योंकि सारे पॉइंट से बहुत दूर है। ए में मेरी रिलेटिवली एरर कम आएगी क्योंकि लाइन के बहुत ज्यादा नजदीक है। सो मेरा माई अल्टीमेट पर्पज इज टू फाइंड बेस्ट फिट लाइन ओके, जिसके लिए कि मेरी एरर मिनिमम हो जाए। और मैं एरर को कैसे जज कर रहा हूँ, मेरा एरर निकाल रहा हूँ बेसिकली ये डिस्टेंस, लाइन से इन सब की डिस्टेंस। ओके, लेट्स से फॉर एग्जांपल इसको मैं बोलता हूँ वाई एक्चुअल, यानी कि जो मेरा एक्चुअल प्राइस है जो मेरे डाटा में दिया हुआ है। ओके, और ये मेरा कौन सा प्राइस है जो मेरे मॉडल ने प्रेडिक्ट किया है, मेरे बेस मॉडल ने, इसको मैं बोलता हूँ वाई प्रेडिक्टेड। तो इस पॉइंट के लिए मेरे मॉडल में क्या एरर है, मेरे मॉडल में एरर आ गई वाई प्रेडिक्टेड माइनस वाई एक्चुअल माइनस वाई प्रेडिक्टेड। ये मेरी एरर है इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए जो कि मेरी लगभग 25 लाख के आसपास आ रही है। अगर मैं सारे डाटा पॉइंट्स के लिए ऐसे एरर निकालूं तो मेरी लेट्स मेरे पास n डाटा पॉइंट्स है तो मेरी एरर हो जाएगी i इक्वल टू 1 to n। दिस इज द कंप्लीट एरर फॉर माय n डेटा रिकॉर्ड्स। ओके, अगर मैं ऑन एन एवरेज एरर निकालूं ईच एंड एवरी पॉइंट के लिए तो मेरी एवरेज एरर हो जाएगी डिवाइड बाय 1n। ओके, इस फॉर्मूले के साथ में ये मेरी सिस्टम की मेरी कंप्लीट एरर आ गई है। ओके, लेकिन इसमें अगर मैं इस फॉर्मूले के थ्रू अगर मैं एरर निकालने के लिए जाऊंगा तो मैथमेटिकली आई हैव ए प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम है वो आशीष और शमशेर हमने डिस्कस किया था, क्या प्रॉब्लम है इसके साथ? आशीष बताओ।
मैथमेटिकली या ज्योमेट्रिकली इस फार्मूले में values will be negated. We यस have, yeah. यस ज्योमेट्रिकली जो पॉइंट्स आपके लाइन से ऊपर हैं उनके लिए डिस्टेंस जो होगी ये पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव डिस्टेंस, और नीचे वाले जो पॉइंट हैं उनके लिए डिस्टेंस नेगेटिव होगी ज्योमेट्रिकली। सो उस केस में क्या करेंगे, ये अगर मैं इसको सबको सम करने के लिए जाऊंगा तो ये एक दूसरे को निगेट कर देंगे। तो व्हाट विल आई डू, आई विल टेक अ मोड ऑफ इट। तो ये क्या करेगा, निगेटिव वैल्यू को भी पॉजिटिव कर देगा। नाउ आई हैव अ समेशन ऑफ ऑल द एरर्स। तो ये मेरे सिस्टम की कंप्लीट एरर आ गई। इसको बोलते हैं आपकी मीन एब्सोल्यूट एरर ऑफ योर बेस मॉडल। और बेस मॉडल मैं कैसे क्रिएट करूंगा, कोई भी रैंडम लाइन में खींच दूंगा। लेट से रैंडम लाइन मेरी ए है और उस रैंडम लाइन के लिए मैं क्या निकालूंगा, सिस्टम की एरर निकालूंगा। तो उस सिस्टम की एरर मैंने निकाली बेस मॉडल के लिए, और ये मेरी मैंने मिनिमम MEE मैंने निकाल के रख लिया, दैट इज कॉल्ड मीन एब्सोल्यूट एरर। ओके, सो MEE हम लोग जनरली यूज नहीं करते हैं, उसको मैं आशीष और शमशेर को ऑलरेडी बता चुका हूँ। बाकी के लिए हम उसकी एक्स्ट्रा क्लास करेंगे। हम करते हैं यूज MSE, मीन स्क्वायर्ड एरर। तो मीन स्क्वायर्ड एरर का फॉर्मूला जरा सा डिफरेंस होता है, उसमें हम क्या करते हैं 1/n सिग्मा i इक्वल टू 1 to n, और ये आपका एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं y एक्चुअल माइनस y प्रेडिक्टेड का स्क्वायर कर देते हैं। तो एक्चुअली हम उसका मोड न लेके इसका स्क्वायर कर देते हैं, और उसका एक मैथ उसका जो रीजन है वो बेसिकली आपका एफिशिएंसी रीजन आपका बहुत बड़ा है, क्योंकि बेसिकली जब हम उसको ऑप्टिमाइज करने के लिए जाते हैं इस एरर को कम, बिकॉज वी हैव टू मिनिमाइज दिस एरर, तो बेसिकली MSE फार्मूला आपको ज्यादा हेल्प करता है। ये दिस इज फास्ट देन दिस मेथड। ओके, इसको हम कल की क्लास में देखेंगे, क्योंकि ये कैसे स्लो है और ये कैसे फास्ट है। तो एज ऑफ नाउ वी विल सी कि आपकी MSE जो होती है, हम MSE हमारा एरर है जिसको हम लेके चलते हैं, दिस माई एरर, मीन स्क्वायर्ड एरर। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मुझे वो लाइन फाइंड आउट करनी है जिसके लिए मेरी MSE जो है ये मिनिमम हो जाए। आई हैव टू मिनिमाइज दिस एरर। सो मिनिमाइज करने का मतलब क्या है कि मुझे वो लाइन फाइंड आउट करनी पड़ेगी जो कि मोर लेस सारे पॉइंट के नजदीक है। और लाइन को चेंज करने के मेरे पास सिर्फ दो तरीके हैं, या तो मैं लाइन को ऊपर नीचे शिफ्ट कर दूं ऐसे, इस वाली लाइन को, या इसका मैं एंगल चेंज कर दूं। दो ही तरीके हैं, या तो मैं ज्योमेट्रिकली इसका स्लोप चेंज कर दूं लाइन का, मैथ M जो मैं M की बात कर रहा हूँ, या इसका इंटरसेप्ट चेंज कर दूं, या C। सिर्फ दो ही तरीके से मैं लाइन को चेंज कर सकता हूँ, और इन्हीं दोनों चीजों को करके मैं चेंज करके मैं बेस्ट फिट लाइन मुझे मिलेगी। सो अगर मैं इसी फार्मूले को अगर मैं ओपन करूँ तो आपको पता ही चलेगा यहाँ से, y इक्वल टू 1/n, y 1 to n, y एक्चुअल ऑलरेडी आपको डेटा में दी हुई है, और y p क्या है आपकी प्रेडिक्टेड, आपकी क्या है बेसिकली, अगर मैं इस फार्मूले से निकालूं y आपकी mx प्लस c के फार्मूले से क्या जाती है आपकी, y इक्वल टू mx, लेट्स इसको मैं m0 बोल देता हूँ, तो इट वुड बी mx प्लस m0 होल स्क्वायर। सो आपकी एरर बेसिकली किस पे डिपेंड करती है, ये आपका कांस्टेंट है, दिस इज अ कांस्टेंट वैल्यू क्योंकि आपको ऑलरेडी डाटा में दी हुई है एक्चुअल वैल्यू। x आपका क्या है, ये आपका एरिया है जो ऑलरेडी आपको डेटा में दिया हुआ है, दिस इज अगेन ए कांस्टेंट वैल्यू। तो आपके पास अननोन वैल्यूज क्या है, m और m0। सो बेसिकली आपकी एरर भी आप किस पे डिपेंड करती है, सिर्फ m पे और m0 पे। सो अगर मुझे एरर मिनिमाइज करनी है तो आई हैव टू फाइंड आउट द बेस्ट पॉसिबल बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ m एंड m0। अगर मुझे बेस्ट कॉम्बिनेशन मिल गया तो मेरी सिस्टम की मुझे परफेक्ट लाइन मिल जाएगी और मेरी एरर मिनिमाइज हो जाएगी, बिकॉज एरर इज ए फंक्शन ऑफ m एंड m0। ओके, यहाँ तक क्लियर है। my error is dependent on two things, m and m0, just simple, plain simple. Okay, so now we will go geometrically here. Not, thank you. इसके लिए हम लोग यूज करते हैं बेसिकली आपका कैलकुलस। हम यूज करेंगे यहाँ पर कैलकुलस इसको मिनिमाइज करने के लिए। कैलकुलस में हम लोग क्या यूज करेंगे, डिफरेंशियल कैलकुलस।
ओके, सो डिफरेंशियल कैलकुलस मुझे हेल्प करेगी इसको मिनिमाइज करने के लिए। ओके, सो डिफरेंशियल कैलकुलस मुझे क्या बताएगी कि मुझे वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है, वो कल हम डिटेल क्लास में देखेंगे नए स्टूडेंट्स के लिए। फिलहाल के लिए क्या है, अगर मुझे m और m0 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो उसका सिंपल तरीका होता है, क्योंकि मुझे बेसिकली क्या निकालना है, e और m और m0। सो इसका डायरेक्ट इक्वेशन मेथड होता है जिसमें कि बेसिकली अगर मैं de बाई dm अगर मैं इक्वल टू 0 कर दूं, सो ये मुझे m की वैल्यू दे देता है जो मेरा परफेक्ट m है, जिसके लिए मेरी एरर मिनिमम हो जाएगी। और उसका सिंपल फॉर्मूला निकल के आता है कैलकुलस का। ओके, लेट्स से फॉर एन एग्जांपल दिस इज माय, अगर मैं अभी m को अगर मैं हटा देता हूँ क्योंकि मेरे पास m0 नहीं है, सिर्फ मेरे पास m है, तो अगर हम e और m के बीच में अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूँ तो दिए आपका ग्राफ आपका मोरलेस ऐसा है कुछ, y fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सेकंड डिग्री का ग्राफ है, तो इसका जो ग्राफ बनता है वो मोरलेस आपका इस तरह से ग्राफ बनता है। ओके, ये आपका m है और ये आपका e है। ओके, तो मैंने कोई भी जो रैंडम लाइन खींची थी m, तो उसके लिए मैंने कुछ m लिया होगा स्टार्टिंग में, लेट्स से वो मेरा m कहाँ पर है, वो मेरा m यहाँ पर है, लेट्स से दिस इज माय m स्टार्टिंग m। ओके, और मेरे किस m के लिए मेरा एरर मिनिमम है, मेरी इस m के लिए मेरे एरर मिनिमम है, तो मुझे बेसिकली ये m मुझे फाइंड आउट करना है। अगर ये m मैंने फाइंड आउट कर लिया तो मेरी एरर उसके लिए मिनिमम हो जाएगी। ओके, लेकिन आप देखोगे तो किसी भी m के लिए मेरी एरर 0 नहीं है, सीधे, क्योंकि बेसिकली हो भी नहीं सकती, क्योंकि मैं रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, तो वो मैं कभी भी मुझे सारे के सारे पॉइंट्स मेरे कभी भी एक लाइन पर हो नहीं सकते हैं। तो इससे सिस्टम में हमेशा एक मिनिमम एरर रहेगी, वो आप यहाँ से देख सकते हो, ये सिस्टम की मिनिमम एरर है जो आपको हमेशा रहेगी। लेकिन मुझे वो पॉइंट ढूंढना है, यानी कि वो m ढूंढना है जिसके लिए सिस्टम की एरर मिनिमम हो जाए, तो मुझे यहाँ से यहाँ तक जाना। तो इसके लिए मुझे हेल्प करता है डिफरेंशियल कैलकुलस, क्योंकि अगर मैं मुझे dy/dm मुझे एक्चुअली क्या देता है, मुझे देता है dy/dm इस पर्टिकुलर पॉइंट पे रेट ऑफ चेंज, कि m को अगर मैं चेंज करता हूँ तो e में कितना चेंज आता है। और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर हम लोग देखेंगे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मेरा रेट ऑफ चेंज क्या है, 0 है, रेट ऑफ चेंज इक्वल टू 0। और रेट ऑफ चेंज में मिलता है बेसिकली डिफरेंशियल कैलकुलस के थ्रू, दैट इज de/dm। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे रेट ऑफ चेंज मेरा 0 होगा, तो अगर मैं d/dm मेरा रेट ऑफ चेंज होता है, उसको मैं इक्वल टू 0 कर दूंगा तो मुझे ये वाला पॉइंट मिल जाएगा। तो इट विल गिव मी द वैल्यू ऑफ m विद कैलकुलस। सो मैं क्या करूंगा, इस de/d का, इस फंक्शन का m के रिस्पेक्टिव में पार्शियल डेरिवेटिव निकालूंगा, वो मुझे m की वैल्यू दे देगा, उसको उठा के मैं कहाँ रख दूंगा, इस इक्वेशन में। ओके, इन द सेम वे मुझे m0 भी फाइंड आउट करना है, तो फिर से मैं पार्शियल डेरिवेटिव निकालूंगा, मैं निकालूंगा de/d इक्वल टू 0, ये मुझे वैल्यू दे देगा m0 की, उसको उठा के मैं यहाँ पुट कर दूंगा, तो मुझे m और m0 दोनों की वैल्यू मिल जाएंगी। मुझे m भी मिल गया, m0 मिल गया, यानी कि मेरा जो मेरा y इक्वल टू mx प्लस m0 जो मेरा मॉडल की इक्वेशन थी उसमें m मिल गया, m0 मिल गया, यानी कि वो मेरी बेस्ट फिट लाइन है जो बेसिकली जिसके लिए मेरे सिस्टम की एरर मिनिमम है। उस लाइन को मैं ड्रॉ कर दूंगा यहाँ पे, एंड दैट इज माय बेस्ट फिट line or the best model that I have able to make out of this given data. I have a question. Yes. So for calculating m0, do we really need to do like derivative for d/d m0? Yes. क्योंकि मुझे Because we have already found the value for m. Okay. Yes, हाँ. And we have the value for x and y as well, ya. हाँ. So if we just put those value in the equation y equal to mx plus m0, we will get the value for m0. नहीं, that is perfectly ये y तो मुझे unknown है, this is my unknown value, right? ये तो मुझे predict करनी है. But जो हमारे पास डेटा है उसमें तो we have that value ना. Yeah, उसमें वो value है, that is m0 does not have any predictors associated with it. Yes. So if we do a derivative, it will become a 0 being a constant. नहीं, एक्चुअली क्या है कि वो मेरे पास जो वैल्यू मुझे दी हुई ना y, वो मेरी कांस्टेंट वैल्यू, मैं इसको यहाँ पर यूज कर लिया, वो जो जिसके आप बात कर रहे हो, दिस इज दिस वैल्यू आई हैव यूज्ड हियर, सो ऑलरेडी कांस्टेंट है मेरे लिए, क्योंकि ऑलरेडी डेटा मुझे दी हुई है, राइट? मुझे प्रेडिक्शन करना है इस y का, कोई भी नया डाटा आता है तो उस पर मेरा प्रेडिक्शन क्या होगा,
तो मेरा y अननोन है न्यू डाटा पे, ठीक है ना, और x जो भी नया डाटा आएगा x मुझे ऑलरेडी दिया हुआ होगा उसके लिए, राइट, ओके, तो ये भी मुझे दिया हुआ है, तो मेरे पास अननोन वेरिएबल क्या है, m और m0, यस, तो m और m0 मुझे फाइंड आउट करने हैं तभी मैं प्रेडिक्शन दे पाऊंगा। करेक्ट, तो मैंने m और m0 मेरे आते हैं इस एरर के पार्शियल डेरिवेटिव के थ्रू, ओके, ओके। सो अगर मैंने जो ये पहले जो मेरा ग्राफ बनाया था ई और एम के बीच में, मेरा बेसिकली ई और एम का ग्राफ था ये 2 डायमेंशन में। अगर मैं थर्ड डायमेंशन में ग्राफ बनाऊंगा इसका, जब मेरा पे एम और एम जीरो दोनों होंगे, तो मेरा ग्राफ मुझे थर्ड डायमेंशन में दिखाई देगा। दिस इज माई m0, दिस इज माई m, और मेरा जो ग्राफ बनेगा वो 3 डायमेंशन में आएगा, मोर लेस ऐसे ऐसे। दिस इज माई 3 डायमेंशन ग्राफ, ओके, जहां पर m होगा m0 होगा, लेट्स से दिस इज माय इनिशियल m0 और m1, और मुझे इस पॉइंट तक पहुंचना होगा, तो मुझे वो पॉइंट निकालना होगा जहां पर बेसिकली रेट ऑफ चेंज 0 है विद रिस्पेक्ट टू m0, एंड रेट ऑफ वो पॉइंट जहां पे रेट ऑफ चेंज 0 है विद रिस्पेक्ट टू m1। तो वो दोनों पॉइंट मुझे मिलेंगे इसके थ्रू, ये पॉइंट और ये, यहाँ से मेरा m आएगा, यहाँ से मेरा m0 आएगा, वो दोनों उठा के मैं इक्वेशन में रख दूंगा, मुझे बेस्ट मॉडल मिल जाएगा, ओके, थैंक्स, ओके। कोई बात नहीं, इसको हम कल क्लास में डिटेल में करेंगे जिनके लिए नहीं हुआ है, ओके। तो लेट्स से अभी तक हम लोग ये सब कर रहे थे जब मेरे पास मैंने सिर्फ एक प्रेडिक्टर लिया था। मैंने क्या प्रेडिक्टर लिया था, सिर्फ आई हैव टेकन प्राइस और एरिया, ओके, जहां पे मेरा m क्या था, m वाज माय प्राइस, सॉरी ना एरिया, और m0 वाज माय बेस प्राइस, ओके। अब लेट्स से मैं सारे वेरिएबल कंसीडर कर लेता हूँ, मैं फ्लोर भी कंसिडर करता हूँ, एज भी कंसिडर करता हूँ, 2 BHK भी कंसिडर करता हूँ, ओके। तो उस केस में जो मेरी जो इक्वेशन बनती है, वो मेरी इक्वेशन बनेगी y इक्वल टू m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3। लेट्स से मेरे पास टोटल m वेरिएबल्स हैं, टोटल mn xn, टोटल n पैरामीटर्स है मेरे पास, प्लस m0, ओके। ये मेरी बनेगी वो इक्वेशन जो मुझे फाइंड आउट करनी है। सो इसमें एक बेसिक जंक्शन होता है लीनियर रिग्रेशन में कि मेरे जितने प्रेडिक्टर्स हैं दे आर ऑल इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, यानी वो एक दूसरे को इफेक्ट नहीं करते हैं, ओके, फर्स्ट assumption। एंड सेकेंड assumption, दे आर ऑल लीनियरली डिपेंडेंट ऑन द वाई, यानी वो सब के साथ वाई के साथ जो रिलेशनशिप है वो लीनियर रिलेशनशिप है। तो अगर मैं वाई और x1 के बीच में निकालूंगा तो मेरे क्या रिलेशनशिप बन जाएगा, y इक्वल टू m1 x1, ऐसे ही m2 के लिए मेरे क्या बन जाएगा, y इक्वल टू m2 x2, ऐसे y के 3। so, सब इंडिपेंडेंटली इसको अफेक्ट कर रहे हैं, तो सबको मैं कंबाइन करके एक सिंगल फॉर्मूला लिखा सकता हूँ, दिस इज माई y इक्वल टू m1 x1 m2 x2 प्लस m3 x3 प्लस m1 x1 into m0। so now this is the, if I am using all the parameters, this is the equation I have to build, okay, using the first assumption and the second assumption। linear regression के 2 assumption होते हैं। so these are all my parameters, sorry coefficient regarding x1 x2 x3 and x0, ये सब मुझे फाइंड आउट करने हैं। तो डायरेक्ट इक्वेशन मेथड के थ्रू मैं कैसे करूंगा, मैं सबसे पहले क्या निकालूंगा, इनकी एरर निकालूंगा फॉर ऑल द गिवन डेटा। तो मेरे पास एरर निकल के आ जाएगी थ्रू MSE, ओके। एरर मेरे पास निकल के आ गई, फिर मैं क्या करूंगा, DE बाई DM इक्वल टू 0 किया, ये मुझे क्या दे देगा, M1, ये मुझे क्या दे देगा, M2, सिमिलरली मुझे MN भी मिल जाएगा और M0 भी मिल जाएगा। ये सारे उठा के मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूंगा, मुझे बेस्ट फिट लाइन मिल जाएगी। एक्चुअली दैट इज नॉट बेस्ट फिट लाइन, क्योंकि इसमें आपके बहुत सारे डायमेंशन हैं। तो एक्चुअली दिस इज योर हाइपर प्लेन, जिसमें कि आपकी n डायमेंशन है, n+1 डायमेंशन। तो आपका n+1 डायमेंशन का हाइपर प्लेन आपको मिलता है। अगर मैं 2 डायमेंशन की बात करूंगा तो आपको जो मॉडल बनेगा वो लाइन होगी। अगर मैं 2 पैरामीटर लेके चलता हूँ तो आपका प्लेन बनेगा, और जैसे आपकी मोर देन 3 डायमेंशन हो जाती है वो आपका हाइपर प्लेन बन जाता है। सो फाइनली जो मुझे मिलेगा वो हाइपर प्लेन की इक्वेशन मुझे मिलेगी, जो मैं फाइंड आउट करूंगा यूजिंग द कैलकुलस, सारे कोफिशिएंट। ये सारे कोफिशिएंट मैंने फाइंड आउट कर दिए, उठा के इस इक्वेशन में रख दिए। सो नाउ आई हैव द बेस्ट फिट मॉडल, ये मेरा मॉडल बन के तैयार हो गया। जो भी नया डाटा आएगा मैं इसके थ्रू उसको निकालूंगा और मुझे वो प्रेडिक्शन दे देगा, ओके। बिल्कुल सिंपल सा तरीका, इतना ही करना, ज्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक है, ओके।
अब इस अप्रोच में, ये अप्रोच बहुत सिंपल तरीके से काम करती है, लेकिन इस अप्रोच में स्टिल वी हैव ए प्रॉब्लम। आशीष, शमशेर, क्या प्रॉब्लम है इस अप्रोच में? शमशेर, Shamsher is there? Shamsher is there. Yeah, Shamsher, let me know what is Yeah, the problem with this yeah. approach. ये मेरी डायरेक्ट इक्वेशन जो मेथड मैंने यूज किया है, डायरेक्ट इक्वेशन मेथड, उसको यूज करके मुझे डायरेक्ट m1 m0 और m1 की सारी वैल्यूज मिल जाएंगी। उसको मैं इक्वेशन में पुट कर दूंगा, मुझे बेस्ट मॉडल मिल जाएगा, दैट इज माई मशीन लर्निंग मॉडल। लेकिन स्टिल आई हैव अ प्रॉब्लम विद डायरेक्ट इक्वेशन मेथड। वो हमने डिस्कस किया था, क्या प्रॉब्लम है इसके साथ? आशीष, okay, so we have a problem with this Number of yes, number of variables are more, so it will work slow. नहीं ऐसा कुछ नहीं है। कितने वेरिएबल्स होंगे कोई बात नहीं, मैथमेटिकली लाइफ बहुत आसान है, मैथमेटिक्स सेम तरीके से काम करती है। वो नॉर्मली पार्शियल डेरिवेटिव निकाल दी जाएगी, आपको वैल्यू देती जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक क्या और क्या प्रॉब्लम है आशीष? सो वी हैव अ प्रॉब्लम विद द इन टर्म्स ऑफ एफिशिएंसी। सो बिहाइंड द सीन्स जो आपकी सारी की सारी कैलकुलेशंस होती हैं यहाँ पर मशीन लर्निंग में, वो सारी आपके मैट्रिसेस के थ्रू होती है, इफ यू रिमेंबर। सो बेसिकली आपका सारा का सारा डेटा, इनपुट डेटा और जितने अभी आपका डेटा है, वो सारा डेटा आपका मैट्रिक्स फॉर्म में जाता है। और जो भी कैलकुलेशन होती हैं, आपको चाहे मैनिपुलेशन करना है या आपको एडिशन करना है या सब्सट्रैक्शन करना है, वो सारा का सारा कैलकुलेशन आपके मैट्रिक्स फॉर्म में होती है। तो आशीष को और शमशेर को मैं बता चुका हूँ, आपके लिए मैं शॉर्ट में बताता हूँ, आपका डिटेल में आपकी कल क्लास होगी। ओके, तो उसमें क्या होता है बेसिकली, जब मैं डायरेक्ट इक्वेशन मेथड में यूज करता हूँ, ओके, सो लेट्स से मेरे पास 1 मिलियन डेटा है। ओके, 1 मिलियन डेटा मेरे पास आरडीएमएस फॉर्मेट मुझे दिया हुआ है। इस फॉर्मेट में मेरे पास ऑलरेडी डेटा अवेलेबल है इस फॉर्मेट में। ओके, लेट्स से आई हैव 1 मिलियन ऑफ डेटा। तो मैं क्या करता हूँ, इस सारे का सारा डाटा मेरा मैट्रिक्स फॉर्म में चला जाता है। एक मैं बड़ा बिगर मैट्रिक्स बनाता हूँ जिसको मैं क्या बोलता हूँ, एक्स। तो आपका सारा का सारा डेटा आपका इस मैट्रिक्स के अंदर चला जाता है। ओके, जिसमें कि मैं फर्स्ट कॉलम रखता हूँ 1, सिंपली 1 आता है इसमें, मैं बताऊंगा 1 मैंने क्यों रखा है। ओके, दिस इज माय फर्स्ट रिकॉर्ड, दिस इज माय nth रिकॉर्ड। ओके, और यहाँ पे आपका फर्स्ट डेटा आ गया, जिसमें कि आपकी वैल्यू आ गई x1 x2 और आपका xn तक आ गया। ऐसे ही आपका x1 x2 xm तक मान लो इसको, टोटल लेट से आपके पास m पैरामीटर्स हैं, xm फीचर्स हैं। ओके, तो इसका साइज कितना होगा, टोटल n रिकॉर्ड्स है मेरे पास। ओके, और टोटल मेरे पास ये कितने हैं, m। ओके, m मेरे पास फीचर्स है जिसको मैं प्रेडिक्टर्स बोलता हूँ। तो इसका साइज क्या होगा मैट्रिक्स का? What will be the size of matrix? How many rows are there? M plus 1. Total m n features plus 1 n plus 1 m plus 1 into n. तो ये मेरा मैट्रिक्स का साइज हो गया, राइट। सो मेरा कंप्लीट डेटा मेरा मैट्रिक्स फॉर्म में रख दिया जाता है यहाँ पर। ओके, अभी मैं क्या करता हूँ, सिर्फ इसकी सिर्फ एक रो लेता हूँ। आई हैव टेकन ओनली सिंगल रो। फॉर एग्जाम्पल मैंने सिर्फ इसकी एक सिंगल रो ली है, यानी कि सिर्फ एक रिकॉर्ड है मेरे पास। ठीक है, इसके लिए मैं डायरेक्ट इक्वेशन मेथड थ्रू क्या करता हूँ, सारे के सारे m में कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो कितने m आएंगे मेरे, बेसिकली m0 से लेके m तक मेरे टोटल। डायरेक्ट इक्वेशन मेथड में सारे में क्या सारे पैरामीटर मुझे निकाल के दे देगा। इसको मैं क्या करता हूँ, एक अलग मैट्रिक्स में रख देता हूँ जिसको मैं कैपिटल M बोलता हूँ। ओके, इसका साइज क्या होगा मेरा इस मैट्रिक्स का? m प्लस 1 इंटू 1, क्योंकि m प्लस 1 रोज है, 1 कॉलम है। ओके,
अब मैं क्या करता हूँ, दोनों को मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ, तो मल्टीप्लाई में डायरेक्ट कर नहीं सकता हूँ, क्योंकि मल्टीप्लाई करने के लिए ये दोनों मेरे सेम होनी चाहिए, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, इसका ट्रांसपोज ले लेता हूँ m का। ओके, तो मैं इसका m का ट्रांसपोज लूंगा तो मुझे कैसे दिखाई देगा ये मुझे, दिस इज माई m ट्रांसपोज, m0 से लेके mm तक। अब इसका साइज मेरा क्या हो गया, 1 इंटू m+1। अब मैं इसको और इसको मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, क्योंकि नाउ दिस बोथ आर मैचिंग। अगर मैं इसको इसको मल्टीप्लाई करूंगा, इस सिंपल को, अब मेरे पास मैंने सिर्फ एक ही रिकॉर्ड लिया है, तो इसका मेरा साइज क्या होगा, लेट से मैंने सिर्फ एक रिकॉर्ड लिया है, तो इसका x का साइज मेरा कितना है, m+1 इंटू 1। ओके, और इसका t का साइज मेरा कितना हो गया, 1 इंटू m+1। अब मैं क्या करता हूँ, x निकालता हूँ। ओके, तो क्या होगा, मैं मल्टीप्लाई होगा, मेरे पास क्या आएगा, m0 की मल्टीप्लिकेशन 1 से, तो क्या मिल जाएगा मुझे, m0, और इसकी m1 की मल्टीप्लिकेशन होगी x1 से, तो क्या मिल जाएगा मुझे, m1 x1। ऐसे मेरा सेकंड आ जाएगा m2 x2, और लास्ट मेरा क्या आ जाएगा, ये और ये mm xm। तो फाइनली मुझे क्या मिल गया, मुझे अपना पूरा का पूरा कंप्लीट रिकॉर्ड मुझे मिल गया, राइट, जो मैं प्रेडिक्ट करने के लिए जा रहा हूँ। तो मैं एक्चुअली मुझे वो अपनी इक्वेशन मिल गई, जो कि मेरी मॉडल की इक्वेशन है। तो अगर मैं सारे डाटा पॉइंट इसमें डाल दूंगा और मैं थीटा में निकाल लूंगा, तो बेसिकली मैं इसको किस फॉर्म में लिख सकता हूँ, अपने हाइपोथेसिस को y इक्वल टू m की पावर tx। इसमें मुझे अपने सारे रिकॉर्ड मिल जाएंगे, ईच एंड एवरी रिकॉर्ड, क्योंकि मैंने सारे रिकॉर्ड इसमें डाल दिए, पैरामीटर्स में सारे इसमें आगे सबको मल्टीप्लाई कर दूंगा, सारे के सारे रिकॉर्ड मुझे मिलते चले जाएंगे लाइन से। मैं अपनी हाइपोथेसिस को लिख सकता हूँ y इक्वल टू, अगर मैट्रिक्स फॉर्म में लिखूंगा तो माई जो मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ, इक्वेशन ऑफ द लाइन ऑफ हाइपरप्लेन, वो एक्चुअली इस फॉर्म में मैं लिख सकता हूँ, y इक्वल टू m ट्रांसपोज t और x। सब जगह आपको मशीन लर्निंग लिटरेचर में आपको यही हाइपोथेसिस मिलेगा। हाइपोथेसिस मतलब मशीन लर्निंग मॉडल, इसको जनरली वो m को भी थीटा लिख देते हैं, तो आपको सब जगह हाइपोथेसिस मिलेगी y इक्वल टू थीटा t x, जहाँ पर थीटा थीटा आपका मैट्रिक्स है बेसिकली किसका, सारे पैरामीटर्स का, जो कि आप फाइंड आउट करोगे, और x आपका मैट्रिक्स है सारे इनपुट डेटा का। सो दिस इज अ हाइपोथेसिस फॉर लीनियर रिग्रेशन। ओके, अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, बेसिकली ये मेरी हाइपोथेसिस आ गई मैट्रिक्स फॉर्म में। अब मुझे क्या, मेरी एरर्स क्या होगी, लेट्स से फॉर एग्जांपल अब ये मेरा परफेक्ट रिलेशनशिप नहीं है। ओके, क्योंकि सिस्टम में कुछ ना कुछ एरर होगी, तो लेट्स से मैं क्या करता हूँ, एक एरर का मैट्रिक्स ही बनाता हूँ फॉर ईच एंड एवरी रिकॉर्ड। ओके, और मैं फर्स्ट रिकॉर्ड के लिए एरर यहाँ पे लिख देता हूँ E1 E2 E3 E, और ये मेरा nth रिकॉर्ड के लिए एरर आ गई, उसको मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। और नाउ दिस इज परफेक्ट रिलेशनशिप, क्योंकि मैंने ये निकाल लिया, मेरे मॉडल जो प्रेडिक्ट कर रहा है और हर एलिमेंट में एरर क्या है वो, अब ये मेरी इक्वेशन बैलेंस हो गई है। ओके, फॉर ईच एंड एवरी रिकॉर्ड के लिए जो एरर आई वो मैंने इसमें ऐड कर दी। तो मेरी एरर क्या होगी सिस्टम की, एरर इज इक्वल टू y माइनस थीटा टी एक्स, और मेरा एमएससी क्या होता है, ई स्क्वायर, तो मैं क्या कर देता हूँ ई डॉट ई, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, y माइनस थीटा टी एक्स का स्क्वायर, और मैट्रिक्स कैसे स्क्वायर कैसे निकालते हैं, y माइनस थीटा टी एक्स और y माइनस थीटा टी एक्स का ट्रांसपोज, तो आपके स्क्वायर आएगा, ये मेरा आ गया ई स्क्वायर। ओके, एमएससी मैट्रिक्स फॉर्म में, एमएससी है मेरा, ये मैट्रिक्स फॉर्म में मैंने मीन स्क्वायर एरर निकाल लिया। अब अगर मुझे यहाँ पर थीटा थीटा निकालना है, यानी कि थीटा का मैट्रिक्स पूरा कंप्लीट, जिसको मैं फाइंड आउट करूंगा, तो मुझे क्या निकालना है बेसिकली, डी ई बाई डी थीटा मैट्रिक्स फॉर्म में निकालना है, उसको मैं इक्वल टू 0 कर दूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, थीटा का मैट्रिक्स मिल जाएगा। अब बेसिकली अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करने जाता हूँ मैट्रिक्स फॉर्म में, समझो इस बात को, अगर मैं इस इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में सॉल्व करने के लिए जाता हूँ, तो मेरे साथ प्रॉब्लम आती है कि फाइनली मेरी इक्वेशन कन्वर्ट हो जाती है मैथमेटिकली, आई विल शो यू। सॉल्यूशन होते होते जो मेरा थीटा निकल के आता है, माई थीटा फाइनली निकल के आता है, थीटा इज एक्स, इवन आई डोंट रिमेम्बर, लेट मी शो यू। इसका जो फाइनली आपका निकल के आता है वो आपका निकल के आएगा
दिस वन, ये दिस इज थीटा। तो आपको x का ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा, x निकालना पड़ेगा, उसका इनवर्स निकालोगे तो फाइनली आपको थीटा मिलेगा। मैं उसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ मैट्रिक्स फॉर्म में बेसिकली। सो बेसिकली आप समझो मैट्रिक्स फॉर्म में, क्योंकि मेरे पास मशीन लर्निंग में सारी जो कैलकुलेशंस होती है बिहाइंड द सीन्स मैट्रिक्स में होती है, तो मुझे dy बाई dx जो मैं निकाल रहा हूँ d बाई dm वो भी मुझे मैट्रिक्स फॉर्म में निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए मुझे ये क्वेश्चन सॉल्व करनी पड़ती है। तो अब इस क्वेश्चन को मैं देखूं तो मुझे बेसिकली इस x का इनवर्स निकालना है। सो नाउ दैट इज द प्रॉब्लम फॉर द डायरेक्ट इक्वेशन मेथड, कि किसी भी मैट्रिक्स का पहले तो आपका इनवर्स पॉसिबल नहीं होता है अगर वो मैट्रिक्स आपका नॉन सिंगुलर ना हो तो। ओके, आपका मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होना चाहिए तभी उसका इनवर्स पॉसिबल है। और जैसे जैसे बेसिकली आपका मैट्रिक्स का साइज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उसका इनवर्स निकालना उतना ही टाइम इनएफिशिएंट होता चला जाता है, आपको बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो उस केस में अगर आपका जो आपके पास डेटा सेट है जिसपे आप मॉडल ट्रेन कर रहे होगा वो डेटा सेट आपका बहुत बड़ा है, तो उस केस में बेसिकली आपको उसका इनवर्स निकालना पड़ेगा आपको पैरामीटर्स निकालने के लिए। और उसमें हो सकता है कि अगर डाटा सेट आपका बड़ा है तो उसको आप इनवर्स निकालने में आपको 1 दिन 2 दिन या 4 दिन या 6 दिन लग जाए। और सारे मैट्रिक्स का इनवर्स पॉसिबल नहीं होता है, सिर्फ जो आपके सिमेट्रिक मैट्रिक्स होते हैं नॉन सिंगुलर होते हैं उसका पॉसिबल होता है। तो उस केस में आप उसका अप्रोक्सीमेट इनवर्स निकालते हो, वो और भी ज्यादा कॉस्ट इनइफेक्टिव हो जाता है, तो आपको टाइम और ज्यादा लगेगा। तो दिस इज द प्रॉब्लम विद द डायरेक्ट इक्वेशन मेथड, कि मैं डायरेक्ट इक्वेशन मेथड जो मैं कह रहा था डी ई बाई डी एम इक्वल टू 0 वो मैं यूज नहीं कर सकता, क्योंकि बिकॉज आई हैव टू फाइंड आउट द इनवर्स ऑफ दिस एक्स मैट्रिक्स जो कि मेरे कंप्लीट डेटा का मैट्रिक्स है। सो बिकॉज ऑफ दैट आई लीव दिस अप्रोच, डायरेक्ट इक्वेशन मेथड अप्रोच को मैं लीव कर देता हूँ क्योंकि मुझे उसका इनवर्स निकालना है एंड दैट इज नॉट टाइम इफेक्टिव। तो अगर मेरा डाटा सेट अगर बहुत बड़ा है तो मुझे इसी में 2 दिन लग जाएंगे, तो 2 दिन का टाइम मेरे पास नहीं है या 5 दिन का टाइम मेरे पास नहीं है। तो आई वांट टू मेक माय सिस्टम फास्ट, सो आई विल गो फॉर द डिफरेंट अप्रोच। सो जो मेरी डिफरेंट अप्रोच होती है उसको मैं बोलता हूँ GD, ग्रेडियंट डिसेंट मेथड। ये ग्रेडियंट डिसेंट मेथड भी मुझे बेसिकली M0 MN सब निकाल के देगा, बट दिस इज अ फास्टर वे, क्योंकि इसमें मुझे x का इनवर्स नहीं निकालना पड़ता है, and because of that it is a faster way to find out all the coefficient of the parameters. Okay, so आपको मशीन लर्निंग की या डेटा साइंस की सारी एल्गोरिथम में, वेदर इट इज कन्वेंशनल एल्गोरिथम और इट इज डीप लर्निंग एल्गोरिथम, चाहे वो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के एल्गोरिथम हो या आपकी कंप्यूटर विजन के एल्गोरिथम्स हो, सारी की सारी एल्गोरिथम में जब भी आप कोफिशिएंट फाइंड आउट करोगे या अपनी एरर को ऑप्टिमाइज करने के लिए जाओगे तो सब जगह आपका यही सेम मेथड यूज होता है, ग्रेडियंट डिसेंट मेथड, बिकॉज दिस इज द फास्टेस्ट मेथड। अभी तक डेटा साइंस के रिसर्च में इससे फास्ट मेथड अभी तक नहीं है, तो सब जगह आपका ईच एंड एवरीवेयर यू यूज द ग्रेडियंट डिसेंट मेथड। ओके, सो व्हाट इज ग्रेडियंट डिसेंट मेथड? लेट्स गेट बैक टू द एग्जांपल। ओके, ये मैंने ग्राफ बनाया था आपका m और e के बीच में। ओके, मोर और लेस इस तरीके का था, ये मेरी फर्स्ट वैल्यू थी। ओके, रैंडम वैल्यू, और मुझे यहाँ तक पहुँचना था। तो पहले मैं क्या कर रहा था, मैं आई वाज जस्ट डूइंग DE बाई DM इक्वल टू 0 और मुझे एग्जैक्टली मुझे m की वैल्यू दे रहा था, तो एक्चुअली आई वाज जस्ट जंपिंग हेयर टू हेयर। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, अब बेसिकली मैं डायरेक्ट इक्वेशन मेथड यूज नहीं करता हूँ, आई गो फॉर अ डिफरेंट अप्रोच। उस केस में आई विल टेक स्मॉलर स्टेप्स, मैं पहले यहाँ से यहाँ पहुंचूंगा, फिर यहाँ से यहाँ पहुंचूंगा, छोटे छोटे स्टेप्स लेके मैं राइट डायरेक्शन में जाता हूँ और फाइनली अल्टीमेटली में पहुंचना मुझे यही है, लेकिन मैं डायरेक्ट नहीं पहुंचूंगा। ऐसा समझ लो जैसे मैं माउंटेन के टॉप पे मुझे खड़ा हूँ, ठीक है, और मुझे वैली तक पहुंचना है। ओके, एक तो डायरेक्ट इक्वेशन मेथड तरीका था, एक मैं सीधे पैराशूट पकड़ूं और नीचे वैली में पहुंच जाऊं, दिस इज डायरेक्ट इक्वेशन मेथड। अब मैं क्या करता हूँ, मैं डायरेक्ट इक्वेशन मेथड यूज नहीं करता हूँ, आई एम नॉट यूजिंग द पैराशूट, आई विल टेक स्मॉलर स्टेप्स।
मैं टॉप ऑफ द माउंटेन खड़ा हूँ, तो सबसे पहले मैं देखूंगा कि मुझे यहाँ से नीचे जाने के लिए, वैली जाने के लिए सबसे अच्छा रास्ता कौन सा है, क्योंकि बहुत सारी पगडंडी हो सकती है छोटे छोटे स्टेप्स लेके, तो कोई रास्ता में उबड़ खाबड़ हो सकता है, किसी में हो सकता है कि, तो एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम सबसे अच्छा रास्ता है, सबसे अच्छी पगडंडी कौन सी है, आई विल गो इन दैट वे, मैं उस रास्ते पे थोड़ा सा चलूंगा, क्योंकि एज ऑफ मोमेंट दिस इज द बेस्ट वे, तो सबसे अच्छा रास्ता मुझे दिखाई दे रहा है। मैं उस पर लेट से 100 मीटर चलता हूँ। 100 मीटर चलने के बाद हो सकता है उसके बाद मैं फिर से अपने आप फिर से रीएवैल्यूएट करूंगा अपने, हो सकता है वहां से 100 मीटर चलने के बाद फिर से लेट से 5 नई पगडंडियां निकल रही हो, तो फिर मैं उन 5 पगडंडी में से फिर से वो जो सबसे फास्टेस्ट रास्ता होगा, यानी कि फास्टेस्ट रास्ता कौन सा होगा, जो जिसका स्लोप सबसे ज्यादा होगा, वो मुझे सबसे जल्दी नीचे पहुंचाएगा, तो मैं फिर से नया रास्ता पिक कर लूंगा जो कि फास्टेस्ट रास्ता होगा। तो फिर से मैं उस पर 100 मीटर जाऊंगा, फिर 100 मीटर जाने के बाद फिर से मैं देखूंगा अब सबसे जो नए रास्ते बन रहे हैं उसमें फास्टेस्ट रास्ता कौन सा है, फिर मैं उसको सिलेक्ट कर लूंगा। तो दिस इज कॉल्ड स्टेप बाय स्टेप। मैं सीधे जंप करके नीचे नहीं पहुंचता हूँ, मैं एक छोटा स्टेप लूंगा, फिर रास्ता चूज करूंगा, फिर 100 मीटर चलूंगा, फिर नया रास्ता चूज करूंगा, फिर 100 मीटर चलूंगा, फिर जो ऑप्टिमम रास्ता का वो चूज करता चला जाऊंगा। तो उस केस में आई गो स्टेप बाय स्टेप। I take the smaller steps. ओके, और ईच एंड एवरी स्मॉल स्टेप में मैं कहाँ जाता हूँ, राइट डायरेक्शन में जाता हूँ, मुझे जहाँ पे राइट डायरेक्शन में जाना है। ओके, एंड द फास्टेस्ट वे में जो फास्टेस्ट जो मेरा रूट होता है उसको मैं चूज कर लेता हूँ। नाउ लेट्स गो बैक टू द स्लाइड्स। दिस इज समथिंग लाइक दिस। आपको मोर लेस इंटरनेट पे आपको यही फिगर दिखाई देगी सब जगह। इफ यू कैन सी हियर, लेट्स से आई एम हियर, मैं यहाँ पर हूँ, इस पर्टिकुलर पॉइंट में अभी पर हूँ, अभी हूँ, ठीक है। ओके, और मुझे बेसिकली दिस इज माय डीपेस्ट पॉइंट, मुझे यहाँ तक पहुँचना है। फॉर एग्जांपल ये यहाँ पर, इसको भी छोड़ देते हैं इस वाले पाथ को, यहाँ तक पहुँचना है। ओके, ये 3 डायमेंशन में मेरा θ1 भी है और θ0 भी है। ओके, और ये मेरी एरर है, तो मुझे यहाँ तक पहुँचना है। तो सबसे पहले क्या होगा, छोटे से स्टेप लूंगा कि बेसिकली इस मोमेंट ऑफ द टाइम सबसे अच्छा रास्ता कौन सा है, यानी कि सबसे ज्यादा स्लोप किस रास्ते पे है, वो मेरा फास्टेस्ट आउट है। तो लेट्स से दिस इज माय फास्टेस्ट आउट, मैं इस पे अपना थोड़ा सा 100 मीटर चलता हूँ, यहाँ तक पहुँच जाता हूँ। उसके बाद फिर मैं देखता हूँ यहाँ से बेस्ट रास्ता कौन सा है, लेट्स से दिस इज माय बेस्ट वे, मैं फिर यहाँ पहुँच जाता हूँ। फिर मैं दूसरा रास्ता, यहाँ से रास्ता अच्छा कौन सा है, लेट्स से मैं इस डायरेक्शन में चलूंगा, दिस इज माय, मैं यहाँ पहुँचूंगा। फिर से देखूंगा, लेट्स से अब मेरा यहाँ आ गया, लेट्स से मेरा यहाँ आ गया, लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरा यहाँ आ गया, उल्टा भी जा सकता है, लेट्स से यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, यहाँ, यहाँ, यहाँ। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। मैं छोटे छोटे स्टेप्स लूंगा और ईच एंड एवरी स्टेप्स पे आई विल ट्राई टू फाइंड आउट द बेस्ट आउट। बेस्ट आउट का मतलब जहाँ पे मेरा स्लोप सबसे ज्यादा होगा वो रास्ते में सेलेक्ट करता चला जाऊंगा, और बेसिकली उस छोटे छोटे स्टेप्स के थ्रू में फाइनली अल्टीमेट उस जगह तक पहुंचूंगा जहाँ पर कि मेरी एरर मिनिमम है। ओके, सो नाउ आई हैव 2 थिंग्स कि मुझे एक तो रास्ता सेलेक्ट करना है, बेस्ट राउट। ओके, और स्टेप्स में कितने बढ़ लूंगा, 2 अननोन वेरिएबल है मेरे पास। ओके, स्टेप्स में कितने बड़े लूंगा कितने छोटे लूंगा उसको हम बोलते हैं लर्निंग रेट। ओके, और ये राउट किस डायरेक्शन में उसको मूव करना है, वो उस डायरेक्शन में मूव करेगा जहां पर बेसिकली आपका स्लोप या रेट ऑफ चेंज मैक्सिमम होगा। तो रेट ऑफ चेंज मेरा मैक्सिमम, रेट ऑफ चेंज में किससे मिलता है, डीई बाई डीएम के थ्रू। सो डी बाई डीएम मुझे बताएगा कि मुझे किस डायरेक्शन मूव करना है, जहां, और लर्निंग रेट मुझे बताएगा कि मुझे कितना मूव करना है। तो लर्निंग रेट आपका हाइपर पैरामीटर होता है और जनरली बाय डिफॉल्ट जो होता है 0.001 के आसपास आपका होता है। तो हम इतना लर्न करते हैं और इस डायरेक्शन मूव करेंगे, और यहाँ के बाद फिर हम देखेंगे बेस्ट रास्ता कौन सा है, तो इस डायरेक्शन मूव कर जाएंगे 0.001। तो इस तरीके से पहुंचते पहुंचते आपका यहाँ पहुंचेगा। दैट इज योर ग्रेडियंट डिसेंट मेथड। तो उसमें एक्चुअली करते क्या है, लेट्स कम हियर। सो हम क्या कर रहे हैं इसमें, पहले मेरे डायरेक्ट इक्वेशन मेथड, दिस वाज माय डायरेक्ट इक्वेशन मेथड। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं m को आपका स्लोली
अपडेट करता हूँ, सो मेरा m कैसे अपडेट होगा, माई m विल गोइंग टू अपडेट लाइक दिस, m इक्वल टू m माइनस alpha is your learning rate de by dm. ओके, अभी फिलहाल इतना ही समझो कि इतना, ये इसको हर स्टेप पे आपको ऐसे अपडेट करता हुआ चला जाएगा। वो क्या करेगा, वो देखेगा बेसिकली कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे डी बाई डी एम, मेरा फिलहाल स्लोप, स्टार्टिंग का स्लोप मेरा इतना है, ठीक है, और एक स्टेप के बाद मैं अपने एम को इतना अपडेट कर दूंगा। लेट्स से मैं यहाँ पर हूँ, ठीक है, ओके, मैं राइट डायरेक्शन में जाना है, मैं उसको डी बाई डी एम को, रेट ऑफ चेंज को, यानी कि रेट ऑफ चेंज मेरा यानी कि स्लोप, उस स्लोप में अल्फा से मल्टीप्लाई करता हूँ। बेसिकली ये समझिए कुछ को, लेट्स से यहाँ पर स्लोप मेरा एक्स है, ओके, एम इज इक्वल टू एक्स, और मुझे कहाँ तक पहुंचना है, एम इक्वल टू 0 तक। तो मुझे एम क्या है, कॉन्स्टेंट, मुझे एम को डिक्रीज करते हुए जाना है। तो एम को मैं कितना डिक्रीज करूंगा, रेट ऑफ चेंज मेरा कहाँ से आता है, रेट ऑफ चेंज मेरा आता है मेरा डी बाई डी एम से, और मुझे रेट ऑफ चेंज अपना 0 करना है, यानी यहाँ तक पहुंचना है मुझे, रेट ऑफ चेंज डी बाई डी एम मुझे 0 करना है। तो मैं रेट ऑफ चेंज डी बाई डी एम एक साथ 0 नहीं करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, उसको धीरे धीरे स्लो करता हो जाता हूँ। तो मैं कितना उसको कम करूंगा, हर बार एम को मैं कितना कम करता जाऊंगा, अल्फा से मल्टीप्लाई करके लर्निंग रेट से। तो डी बाई डी एम को मैं रेट ऑफ चेंज को धीरे धीरे कम करूंगा, कितना, अल्फा से मल्टीप्लाई करके। अल्फा मेरा कितना होता है 0.001। तो ईच एंड एवरी स्टेप में एम को राइट डायरेक्शन में कम करता चला जाऊंगा। तो एक स्टेप के बाद एम आपका यहाँ पहुंच जाएगा, दूसरे स्टेप के बाद यहाँ पहुंच जाएगा, तीसरे के बाद यहाँ, फोर्थ पे यहाँ, हो सकता है आपका 100 स्टेप्स के बाद, लेट्स से 1000 स्टेप्स के बाद आपको यहाँ पहुंच जाएगा। So now I have reached the right point, but I have taken the small steps. तो इस केस में क्या होता है, मुझे इस केस में बेसिकली x का इनवर्स मुझे को नहीं निकालना पड़ता है, तो मुझे पहले निकालना पड़ा था, that I have not to, and that is why this process becomes very very fast. इसमें कितना कंफ्यूजन है मुझे बताओ, कितना समझ में आया और कितना समझ में नहीं आया। सब समझ में आ गया? आशीष कोई कंफ्यूजन? शमशेर? ओके, पंकज? ओके, सो वी आर परफेक्ट। अब हमने क्या किया, हमने ये निकाल लिया, एम कैसे अपडेट करेंगे। अब हम पूरा लिखते हैं बेसिकली, तो ये कैसे अपडेट होता है, ये अल्फा डी बाई डी एम। तो ये क्या करेगा, ईच एंड एवरी पॉइंट के लिए देखता है कि आपको डी बाई डी एम ईच एंड एवरी पॉइंट के लिए निकालता है। तो आपका फॉर्मूला एक्चुअली में होता है आई इक्वल टू 1 to जितने आपके टोटल डाटा पॉइंट्स हैं डिवाइड बाई एन। सो ईच एंड एवरी पॉइंट के लिए डी बाई डी एम निकालेगा, उसको अल्फा से मल्टीप्लाई करके उसका एवरेज ले लेगा, और एवरेज लेने के बाद उसको एम से घटाएगा। इसका एक पॉइंट एग्जाम पे लेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे अपडेट होता है। अब हम चलते हैं सिंपली कंप्लीट एल्गोरिथम पे, मशीन लर्निंग लीनियर रिग्रेशन की कंप्लीट एल्गोरिथम। सबसे पहला स्टेप क्या होगा मेरा, अगर मुझे मशीन लर्निंग का मॉडल बनाना है, आई विल कलेक्ट द डेटा, डेटा मेरे पास आ गया। सेकंड स्टेप, आई विल फाइंड अ रैंडम लाइन, मैं सबसे पहले एक रैंडम लाइन सेलेक्ट करूंगा, या मैं रैंडम प्लेन बोल रहा हूँ उसका, रैंडम हाइपर प्लेन। मेरे को भी रैंडम हाइपर प्लेन बनाऊंगा, दैट इज योर m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस mn xn प्लस m0, यानी कि मैं m1 m2 की मैं रैंडम वैल्यू को भी पुट कर लूंगा, ठीक है। उसके हिसाब से मेरी फर्स्ट रैंडम मेरा बेस मॉडल मेरा बनकर तैयार हो जाएगा, जो मेरा रैंडम मॉडल है, ठीक है। वो मेरा कितना सही है कितना गलत है मुझे इससे मतलब नहीं है, मैंने एक रैंडम, सबसे पहले एक रैंडम मैंने हाइपर प्लेन बना दिया, ओके। इस रैंडम हाइपर प्लेन के हिसाब से मैं क्या करूंगा, अपने सिस्टम की एरर निकालूंगा कि जो मैंने रैंडम हाइपर प्लेन बनाया है उसके हिसाब से सिस्टम की एरर कितनी है। तो एरर मेरी किससे निकल के आएगी, MSE से। MSE मेरा क्या है, MSE इज माई y एक्चुअल माइनस y प्रेडिक्टेड का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2n सिग्मा i इक्वल टू 1 to n। तो मैंने क्या किया, डाटा कलेक्ट किया, रैंडम लाइन ड्रॉ की, और उस रैंडम लाइन के थ्रू मैंने क्या निकाला, MSE निकाल ली, ओके। MSE मेरे पास निकल के आ गई। फोर्थ पॉइंट, अब मेरा फोर्थ स्टेप मेरा क्या होगा, मैं MSE मेरे पास निकल के आ गई, ओके। इस E के हिसाब से अब मुझे
M1 M2 और M1 को अपडेट करना है राइट डायरेक्शन में। यानी क्या है समझो, मैं 2 डायमेंशन की बात करके चलता हूँ। ये मेरा एरिया है और ये मेरा प्राइस है, ये मेरे पॉइंट्स थे। ओके, जो मैंने रैंडम लाइन खींची, लेट से फर्स्ट मेरी रैंडम लाइन ये थी। ओके, आप देखो मेरे पॉइंट से बहुत दूर है, सिस्टम बहुत ज्यादा एरर है। तो अब ये क्या करेगा, इस लाइन को राइट डायरेक्शन में मूव करेगा। तो राइट डायरेक्शन किधर है इसकी, जैसी बात है इसको अपवर्ड्स इसको मूव करना चाहिए। लेट से कुछ पॉइंट इसके नीचे की तरफ है, ओके, कुछ पॉइंट ऊपर की तरफ है। तो लॉजिकली इसको किस तरफ मूव करना चाहिए लाइन को? अगर मुझे इसकी एरो को मिनिमम करना है तो लाइन को मैं ऊपर मूव करूंगा कि नीचे मूव करूंगा? आई विल मूव इट अपवर्ड्स और आई विल मूव इट डाउनवर्ड्स। मैं इसको ब्लू पॉइंट की तरफ मूव करूंगा या ब्लैक पॉइंट की तरफ मूव करूंगा? अपवर्ड। अपवर्ड, क्योंकि बेसिकली ऊपर वाले पॉइंट्स ज्यादा हैं, तो उनकी जो मेरी ओके अपवर्ड्स, बिकॉज दैट मेक सेंस, क्योंकि ऊपर वाले पॉइंट्स मेरे ज्यादा हैं, तो उनकी जो मेरी कम्युलेटिव जो मेरी एरर है वो ज्यादा है बिकॉज ऑफ दैट, तो उनका वेटेज ज्यादा है। और मैं वो लाइन ड्रॉ करता हूँ जिसके लिए ऑन एन एवरेज सारे पॉइंट्स के लिए एरर मिनिमम हो जाए। तो इसका मतलब मुझे लाइन को ऊपर मूव करना चाहिए। सो मेरी लाइन कहाँ मूव होगी? ऊपर की तरफ मेरी लाइन मूव होगी, राइट? आई विल मूव द लाइन इन द अपवर्ड डायरेक्शन। ओके, सो अब लाइन को मूव करने के दो ही तरीके हैं, मैं m को चेंज करूंगा और m0 को चेंज करूंगा। ठीक है, और वो मुझे कहां से फाइंड आउट करूंगा? मैं यूजिंग द ग्रेडिएंट डिसेंट मेथड। तो मेरा m कैसे चेंज होगा? m माइनस I इक्वल टू 1 to m डिवाइड बाई n लर्निंग रेट पार्शियल डेरिवेटिव डी बाई dm। अब इस पॉइंट को समझो, ये लाइन को कैसे मूव करने जा रहा है। ये सबसे पहले लेट से मेरा ये मेरा वेरी फर्स्ट पॉइंट है, ये मेरा फर्स्ट पॉइंट है, ये मेरा सेकंड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट है। ये सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट के देखेगा कि फर्स्ट पॉइंट मेरा क्या चाहता है। फर्स्ट पॉइंट के हिसाब से लाइन को ऊपर मूव करना चाहिए, नीचे मूव करना चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट मुझे डायरेक्शन क्या देगा? अपवर्ड्स। कि फर्स्ट पॉइंट के हिसाब से लाइन ऊपर मूव करनी चाहिए, तो डी बाई डी एम क्या डायरेक्शन देगा मुझको? अपवर्ड डायरेक्शन देगा, ये वाला पॉइंट कि लाइन को ऊपर मूव करना चाहिए। ये वाला पॉइंट भी चाहेगा, क्योंकि मैं इस पॉइंट के रिलेटिव डी बाई डी एम निकाल रहा हूँ, तो ये पॉइंट भी चाहेगा कि लाइन ऊपर मूव हो, तो ये भी मुझे अपवर्ड डायरेक्शन बताएगा। ये सारे पॉइंट मुझे अपवर्ड डायरेक्शन बताएंगे, लेकिन ये पॉइंट क्या बताएंगे मुझे? डाउनवर्ड डायरेक्शन बताएंगे। तो डी बाई डी एम इनके लिए पॉजिटिव होगा, इन 3 पॉइंट्स के लिए निगेटिव आएगा। ओके, तो लेकिन मुझे क्या है, मुझे वो डायरेक्शन सेलेक्ट करनी है जिस डायरेक्शन के लिए एरर मेरी मिनिमम की तरफ जा रही हो। तो मैं बेसिकली ऊपर वाले पॉइंट्स का मैं दिखा लूंगा, तो इन सबका वेटेज मेरे ज्यादा हो जाएगा, ये सारे मेरे पॉजिटिव आ जाएंगे और ये मेरे निगेटिव है डायरेक्शन। तो अल्टीमेटली जो मेरी डायरेक्शन आएगी, फाइनली मेरी अल्टीमेट डायरेक्शन मेरी पॉजिटिव निकल के आ जाएगी। तो ये मेरी अल्टीमेट डायरेक्शन है। मैं सारे पॉइंट्स के लिए मैं क्या निकाल रहा हूँ? डी बाई डी एम, फिर उसका एवरेज निकाल रहा हूँ। तो ये मुझे फाइनल दे देगा कि इसको ऊपर मूव करना है या उसको नीचे मूव करना है। ये सिर्फ ये ईच एंड एवरी पॉइंट के लिए एवरेज में निकाल रहा हूँ। ओके, सो अल्टीमेटली क्या बताएगा? मुझको ऊपर मूव करना है। तो ये क्या करेगा? बेसिकली ये लाइन को हल्का सा ऊपर की तरफ शिफ्ट कर देगा। अब मेरी लाइन क्या बन जाएगी? मोर और लेस लेट इज समथिंग इस तरीके से। ओके, तो लाइन इसने हल्के शिफ्ट कर दी। अब आप देखोगे तो लाइन थोड़ी सी बेटर लाइन हो गई है, हल्की सी अपवर्ड चेंज हो गई है, लेकिन अभी भी परफेक्ट लाइन नहीं बनी है, क्योंकि उसने हल्का सा मूव किया है इस लर्निंग रेट की वजह से। एग्जैक्ट मेरे को करेक्ट पोजीशन नहीं मिली है उसकी। तो अब मैं क्या करूंगा? मेरी लाइन, मेरे पास पहले लाइन ये थी लाइन 1, अब मेरे को लाइन 2 मिल गई है, दिस इज बेटर लाइन। अब मैं क्या करूंगा? फिर से सिस्टम की एरर निकालूंगा। ओके, आई विल गो अगेन टू थर्ड पॉइंट, फिर से सिस्टम की एरर निकालूंगा। आई विल फाइंड आउट द न्यू एरर्स, अगेन गो बैक टू द थर्ड पॉइंट। सिस्टम में अभी भी एरर है, यस सिस्टम में अभी मेरी एरर है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा? एमएससी निकालूंगा। एमएससी निकालने के बाद फिर से हमको अपडेट करूंगा, थर्ड पे जाऊंगा, फिर फोर्थ पॉइंट पे आऊंगा, फिर देखूंगा यस अभी भी सिस्टम में एरर है, फिर से हमको अपडेट करूंगा, सारे मेरे एम अपडेट हो जाएंगे। लेट से अब मेरी जो नई लाइन बन गई वो मेरी ये वाली लाइन बन गई है, थोड़ी सी बेटर, लेट से फॉर एग्जांपल। ओके, वो फिर से चेक करेगा कि सिस्टम में अभी भी एरर है, पहले मेरी एरर कितनी थी और अब एरर कितनी है, यानी कि सेकंड लाइन जब मेरी बनी थी तब सिस्टम की एरर कितनी थी, अब थर्ड लाइन में एरर कितनी है। तो अगर मेरा कोई ऐसा पॉइंट आ रहा है कि जहाँ पे मेरी एरर जो है वो बेसिकली मेरी इंक्रीज नहीं हो रही है 10 की पावर -3 से, तो इसका मतलब
जब मैं लाइन को चेंज कर रहा हूँ तो एरर में कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब मैं M1 M0 कितने भी चेंज करूंगा मेरी लाइन चेंज होने वाली नहीं है। तो उस केस में उसका मतलब आपको परफेक्ट लाइन मिल गई है, आपको मोरलेस आप मिनिमम एरर वाली पॉइंट पे पहुंच गए हो, आप उससे अच्छी लाइन नहीं बना सकते। तो हर बार आप क्या करोगे, MSE निकालोगे, MSE को चेंज करोगे कि एरर में 10 की पावर माइनस से ज्यादा का डिफरेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर इससे ज्यादा डिफरेंस है इसका मतलब वही एरर और चेंज हो सकती है। फिर आप हमको फिर से अपडेट करोगे, फिर वापस जाओगे, फिर MSE चेक करोगे, फिर देखोगे एरर 10 की पावर माइनस से कम है या ज्यादा है, अगर ज्यादा है फिर आप उसको अपडेट करोगे। ये साइकिल आपकी लगातार चलती रहेगी जब तक कि बेसिकली आपकी एरर कन्वर्ज नहीं हो जाती। इसका मतलब बेसिकली जो आप नई लाइन बना रहे हो पहले लाइन से बहुत ज्यादा बेटर नहीं है, सिर्फ उसके आसपास ही वो घूम रही है, ठीक है ना, कभी कम हो जाती है कभी ज्यादा हो जाती है। तो उस केस में आप क्या करोगे, आप एक पॉइंट ले लेते हो थ्रेशोल्ड कि जब भी 10 की पावर माइनस से कम आ जाएगी सो आई विल स्टॉप, यानी कि आपको बेस्ट फिट लाइन मिल गई है, आपको जो नई लाइन इस समय आपके पास जो है वो बेस्ट फिट लाइन है, एंड दिस इज द योर अल्टीमेट बेस्ट मॉडल। तो दिस इज योर कंप्लीट स्टेप इन द लीनियर रिग्रेशन। इसमें कितना कंफ्यूजन है? इस केस में मैट्रिक्स यूज नहीं करेंगे कैलकुलेशन? नहीं, बिहाइंड द सीन, बैकग्राउंड हाँ बिहाइंड द सीन्स आपका सारा मैट्रिक्स यूज होगा, लेकिन मुझे इनवर्स नहीं निकालना पड़ेगा इसका, ठीक है ना, क्योंकि उस इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व कर रहा था मुझे मैट्रिक्स निकालना पड़ रहा था। अगर मैं यहाँ इस इक्वेशन को सॉल्व करूंगा यहाँ पे, क्योंकि मैं ये निकाल रहा हूँ बेसिकली यहाँ पे m को मैं अपडेट कर रहा हूँ, आप देखो तो मैं डायरेक्ट m को एक बार डायरेक्ट वैल्यू नहीं निकाल रहा हूँ, मैं m को धीरे धीरे अपडेट कर रहा हूँ। तो इस फॉर्मूले में मुझे इनवर्स निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है, दैट्स व्हाई इट बिकम वेरी फास्ट। तो थंब रूल ये होता है कि बेसिकली अगर आपके पास जो डेटा है, ठीक है, अगर आपका डेटा टोटल 10,000 रिकॉर्ड से कम है अगर आपके पास, यस इज द लिमिट राइट। सो अगर आपके पास टोटल रिकॉर्ड जो 10,000 से ज्यादा है तो उस केस में यू विल ऑलवेज गो फॉर द ग्रेडिएंट डिसेंट मेथड, ये आपका फास्ट होता है। अगर आपका डेटा 10,000 से कम है तो 10,000 से अगर आपका डेटा कम है तो उस केस में इनवर्स फास्ट हो जाता है, क्योंकि आपका मैट्रिक्स छोटा होता है तो उसका इनवर्स जल्दी से निकल आता है। तो उस केस में आप डायरेक्ट इक्वेशन मेथड यूज करोगे, वो ज्यादा फास्ट होता है। तो लेकिन आप डाटा साइंस में अगर देखो तो 10,000 बहुत स्मॉल डेटा है, इतना कम डेटा से आप कभी मॉडल बनाओगे तो हमेशा आपका खराब मॉडल ही बनेगा। तो डेटा हमेशा आपका बहुत ज्यादा होता है, 10,000 से बहुत ज्यादा, 1000 टाइम्स 100 टाइम्स। तो दैट्स व्हाई वी जनरली डोंट यूज द डायरेक्ट इक्वेशन मेथड, वी ऑलवेज गो फॉर द ग्रेडिएंट डिसेंट मेथड, okay, because it is fast, okay, so this is called gradient descent methodology. Any query? कोई भी query? Perfect, we are good. So now let's go back to slides. स्लाइड्स अब हमें बहुत आसान है हमारे लिए स्लाइड्स को करना, क्योंकि लाइफ बहुत आसान है, अब आपको सारी चीज़ समझ में आ गई है, तो लाइफ इज इजी फॉर अस। लेट्स से कलर ले लिया हमने, लेट्स से वी हैव टेकन ब्लू, ओके। सो दिस इज योर हाइपोथेसिस, ओके, ऑफ द लीनियर रिग्रेशन। इसको अगर मैं मैट्रिक्स फॉर्म में लिखूं तो कैसे दिखाई देगी आपकी ये थीटा टी एक्स, थीटा मतलब वही m0 m1, इसको मैं थीटा 0 थीटा 1 बोल रहा हूँ, ठीक है। तो दिस इज योर हाइपोथेसिस फॉर द लीनियर रिग्रेशन, ओके। ये सब हम कहानी सब देख चुके हैं, दिस इज सेम थिंग, ये सब हम देख चुके हैं, इसमें कुछ भी नया नहीं है। सो आपकी जो फाइनल इक्वेशन बन के आती है दैट इज दिस थिंग, दिस इज योर कॉस्ट फंक्शन जो हमने भी देखा था, दिस इज एस थीटा एक्स आई जो योर वाई प्रेडिक्टेड, ये आपका y एक्चुअल है, इसका स्क्वायर हमने कर दिया इक्वल टू डिवाइड बाय 2m। तो ये आपका कॉस्ट फंक्शन है यार, एरर फंक्शन जो अभी देख रहे थे दैट इज योर एरर फंक्शन, ओके। 2 हम एक्स्ट्रा ऐड करते हैं इसमें, इसका लॉजिकल सिग्निफिकेंस कोई नहीं है, ये सिर्फ आपका जब हम इसका एक्चुअल dy बाई dx निकालते हैं पार्शियल डेरिवेटिव डी बाई dm और mm0, तो बेसिकली उसमें आपको हेल्प करता है, ये 2 आपका इधर आ जाता है, उससे कट जाता है, तो आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाती है, इसलिए इसमें 2 ऐड किया गया है। रिजल्ट पे आपका बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, ऑलमोस्ट नहीं पड़ता है, तो ये मैथमेटिकल कन्वीनियंस के लिए हमने 2 इसमें ऐड कर दिया है,
ओके, इसका सिर्फ यही पर्पज है। ओके, सो ये ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, ये ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। ओके, ये आपका पॉजिटिव स्लोप है। अगर आपकी लाइन, अगर आपका इनिशियल जो आपने एम लिया था यहाँ पर है, तो आपको इस डायरेक्शन में मूव करना है, यानी आप स्लोप को नेगेटिव करोगे। अगर आप इस डायरेक्शन में हो, ऑलरेडी जो आपने एम लिया वो इस तरफ था, तो आपको इस डायरेक्शन में मूव करेंगे, तो बेसिकली आप स्लोप को ऐड करते जाओगे, ये स्लोप आप नेगेटिव करते जाओगे। तो डिपेंड करता है कि आपने जो इनिशियल जो रैंडम बेस मॉडल बनाया है वो आपका एम आपने क्या लिया था, तो इस हिसाब से एडजस्ट होता चला जाता है। इधर है तो इधर मूव होगा, इधर है तो इधर मूव होगा, फाइनल पहुंचोगे आप इसी पॉइंट पे। ओके, सो अब दो इशू आते हैं। अगर आपने जो लर्निंग रेट लिया, अगर आप बहुत स्मॉल लर्निंग रेट लोगे, तो उस केस में क्योंकि आपका जो एम अपडेट होता है, अगर आप देखोगे जो आपका थीटा अपडेट होता है वो आपका अल्फा पे डिपेंड करता है। तो अगर आप बहुत छोटे स्मॉल रेट लोगे अल्फा, तो बेसिकली आप बहुत छोटे छोटे स्टेप लेके आगे बढ़ रहे हो, तो उस केस में आपकी लर्निंग बहुत स्लो जाती है। थीटा को बेसिकली यहाँ तक पहुँचने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। सो आप अगर बहुत ज़्यादा छोटा लोगे तो आपकी लर्निंग बहुत स्लो हो जाएगी। अगर आप बड़े लोगे, लेट्स मैं यहाँ पर हूँ, एक मैंने जंप यहाँ मारा, फिर यहाँ मारा और बहुत, तो उस केस में ये हो सकता है कि जब आप बड़े स्टेप ले रहे हो तो हो सकता है यहाँ तक पहुंचे ही ना, वो सीधे यहाँ से यहाँ जंप कर जाए, यहाँ से फिर यहाँ जंप कर जाए, यहाँ से यहाँ जंप कर जाए। तो बड़ा अगर लर्निंग रेट लोगे तो बेसिकली क्या करता है, मिनिमम पॉइंट को जंप कर जाता है। सो यू हैव टू ऑलवेज टेक केयर ऑफ कि आप बहुत छोटा लोगे तो लर्निंग स्लो हो जाएगी, बहुत बड़ा लोगे तो आपका इस वाले पॉइंट को जंप कर जाता है। ओके, तो आपको एक, यू हैव टू फाइंड आउट अ राइट कैंडिडेट फॉर अल्फा, कि आप एक ट्रेड ऑफ लोगे बेसिकली इन दोनों के बीच में। तो बाय डिफॉल्ट जो होता है लर्निंग रेट अल्फा आपका बाय डिफॉल्ट 0.001 होता है। दिस इज अ हाइपर पैरामीटर जिसको आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। अगर आपको फास्ट लर्निंग करनी है तो आप इसको थोड़ा बढ़ा भी सकते हो, बट टेक द प्रिकॉशन कि आपका ये वाली सिचुएशन ना आए। ओके, सो So आपको Ajay, पता to कैसे, increase alpha, how much is actually? I mean, if there is something like standard, like what maximum can be taken for alpha? स्टैंडर्ड जो होता है आपका बाय डिफॉल्ट 0.001 होता है। ओके, जो आपका ये अगर आप कुछ तो भी नहीं, मिनिमम हो गया ना? मिनिमम नहीं है, वो अगर स्टैंडर्ड है। दैट इज ओके, स्टैंडर्ड कि अगर आप कोई भी वैल्यू नहीं दोगे तो दिस इज द 0.001 डिफॉल्ट वैल्यू है, जो कि मतलब जो रिसर्च से निकल के आएगी, मतलब मोर और लेस सबसे अच्छा काम करती है। ओके, तो अगर आप कुछ भी वैल्यू नहीं दोगे तो बाय डिफॉल्ट 0.001 लेगा। ओके, अगर आप प्रोसेस को फास्ट करना चाहते हो, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, प्रोसेस फास्ट हो जाएगा, लेकिन ये सिचुएशन आ सकती है कि आप इसको जंप कर जाओ। तो आप इसको 0.05 करके भी ट्राई कर सकते हो, आप इसको पॉइंट कम भी कर सकते हो। कम वाले केस में क्या होगा, लर्निंग आपकी स्लो हो जाएगी, लेकिन बेसिकली आपको थोड़ा सा बेटर रिजल्ट देगा, क्योंकि फाइनली जब हम इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाएंगे तो आप देखोगे तो ये बेसिकली टॉगल करता है आसपास, ऐसे ऐसे घूमता फिरता है। तो बेसिकली एग्जैक्टली कभी भी एरर पॉइंट पे नहीं पहुंचता, उसके आसपास से कन्वर्ज हो जाता है, क्योंकि हम एरर को 10⁻³ लेके चलते हैं। तो एग्जैक्ट इस पॉइंट पे नहीं पहुंचेगा, आसपास कहीं कन्वर्ज हो जाएगा, तो वहां पे हम रुक जाते हैं। तब अगर आप लर्निंग रेट कम लोगे तो ये बेसिकली इस पॉइंट के बहुत नजदीक पहुंच जाता है, तो आपको रिजल्ट थोड़े से बेटर मिलते हैं, लेकिन प्रोसेस आपका उतना ही स्लो हो जाएगा। so can we judicially decide alpha? Like, can we change in between iterations? Let's say for the first 5 steps, I have taken a larger alpha, so it will come down faster, and then when closing to the minimum error, I reduce the value of alpha to get the Yes, closing. yes, that is very good question. So yes, perfectly fine, उसको हम बोलते हैं gradient descent with momentum। उस केस में हम क्या करते हैं कि हम चाहते हैं कि स्टार्टिंग में तो बहुत फास्ट चले, हम बड़े बड़े स्टेप लेके आए, और जैसे वो नजदीक पहुंचे तो बेसिकली क्या करेंगे, वो स्टेप छोटे करते चला जाए। तो उस केस में मैं ऑन एन एवरेज मेरा फास्ट काम करेगा, उसको बोलते हैं ग्रेडिएंट डिसेंट विद मोमेंटम। जैसे जैसे वो फास्ट होता चला जाएगा, उसकी उसके लर्निंग रेट क्या वो कम होता चला जाएगा। पहले लर्निंग रेट बड़ा रहेगा, फिर आपका छोटा होता चला जाएगा। तो दैट इज ऑप्टिमाइजेशन ऑफ द ग्रेडिएंट डिसेंट मेथोडोलॉजी। वो हम आगे पढ़ेंगे कि ग्रेडिएंट डिसेंट विद मोमेंटम कैसे काम करता है। ओके, लेकिन अगर आप वैसे भी लॉजिकली देखोगे तो ऑलरेडी ये सिस्टम आपका स्लो हो जाता है, क्योंकि आप देखोगे तो हम कैसे अपडेट कर रहे हैं, इस चीज के थ्रू हम अपडेट कर रहे हैं, राइट। और स्टार्टिंग में ये वैल्यू क्या रहेगी आपकी, ये वैल्यू आपकी हमेशा ज्यादा रहेगी, क्योंकि आपका रेट ऑफ चेंज है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे रेट ऑफ चेंज ज्यादा है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे रेट ऑफ चेंज और कम हो गया, नीचे बढ़ते बढ़ते रेट ऑफ चेंज एक्चुअली आपका कम होता जा रहा है। तो ये वैल्यू भी एक्चुअली आपकी कम होती जा रही है। तो मतलब वैसे भी अगर नॉर्मली देखोगे तो आपका ये प्रोसेस स्लो होता जा रहा है। ओके, लेकिन फिर भी अगर मुझे और भी ज्यादा कंट्रोल करना है
तो मैं अल्फा को भी कंट्रोल कर सकता हूँ कि स्टार्टिंग में अल्फा मेरा बड़ा हो और बाद में और छोटा होता चला जाए, तो उस केस में आपको ज्यादा बेटर रिजल्ट मिलते हैं, जिसको आप बोलते हो ग्रेडिएंट डिसेंट विद मोमेंटम। हम आगे पढ़ेंगे कि इसके और ज्यादा ऑप्टिमाइज तकनीक और कौन कौन सी होती हैं जहाँ आप ग्रेडिएंट डिसेंट को बेटर तरीके से यूज कर सकते हैं। उसमें फिर आपके एडम आ जाते हैं, आपके बहुत सारे तरीके हैं, जब आगे पढ़ेंगे उसमें एडम आता है, उसमें आपका आर एडम आ जाता है, बहुत सारे डिफरेंट, अभी बहुत सारे रिसर्च के थ्रू बहुत सारी नई टेक्निक्स आ गई हैं जिसमें हम ग्रेडिएंट डिसेंट को और ज्यादा ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। ओके ओके, सो दिस इज अनदर थिंग कि बेसिकली अगर हम अब देखेंगे हमारे ग्राफ में बेसिकली हमको एरर के इस पॉइंट तक पहुंचना होता है। अगर हम इस पॉइंट को देखें तो हम एरर के इस पॉइंट तक पहुंच रहे हैं, और हमने जो एरर का ग्राफ भी बनाया था तो हम बेसिकली इस तरह का ग्राफ बना रहे थे। तो अगेन वी हैव अ लिमिटेशन फॉर द कैलकुलस। अगर मेरे लेट से एरर का और जो मैंने ग्राफ बनाया था एरर का, अगर मेरा एरर का ग्राफ लेट से मेरा ये बन के आ गया, अभी तक मेरा एरर का ग्राफ लेट से ये बन रहा था, लेट से मेरा एरर का ग्राफ इस तरह का बन के आ गया, तो उस केस में मेरे साथ क्या प्रॉब्लम हो सकती है? लेट से जो मैंने रैंडम जो मैंने बेस मॉडल बनाया था, लेट से उसमें मैंने एम ये लिया था, दिस इज माय थीटा 1। ओके, और जब मैं इसको ऑप्टिमाइज करने के लिए जाऊंगा तो ये क्या करेगा, इस पॉइंट तक पहुंचेगा, इस पॉइंट तक पहुंचेगा और यहाँ जाके कन्वर्ट कर जाएगा, और इसके आगे तो जाएगा नहीं क्योंकि इसके बाद तो आपका बढ़ना ही स्टार्ट हो गया है, तो यहाँ पे वो रुक जाएगा। और लेकिन मेरे एरर मिनिमम कहाँ पे है, मेरी एरर मिनिमम कहाँ पे है, मेरी एरर मिनिमम है इस पॉइंट पे। मुझे पहुंचना था यहाँ पे, लेकिन जो मैंने इनिशियली जो मैंने रैंडम वैल्यू ली थी उसकी वजह से, अगर रैंडम वैल्यू मेरी यहाँ पे ली होती मैंने तो मैं यहाँ तक पहुंच जाता, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन रैंडम वैल्यू तो रैंडम वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेट्स से वैल्यू यहाँ पर थी, तो उस केस में यहाँ पर कन्वर्ज कर जाऊंगा मैं और यहाँ तक नहीं पहुंचूंगा। इसको बोलते हैं कि व्हेन माय एरर फंक्शन इज हैविंग द लोकल मिनिमम, लोकल ऑप्टिमा, लोकल मिनिमम, तो देन आई हैव एन इशू। उस केस में मेरा जो मेरा ग्रेडिएंट डिसेंट फंक्शन है वो लोकल मिनिमम पर कन्वर्ज कर जाता है और मैं ग्लोबल मिनिमम पे नहीं पहुंच पाता हूँ। तो उसके दो तरीके हैं, उसमें आप बेसिकली या तो आप कैलकुलस की डिफरेंट मेथोडोलॉजी यूज करो, उसमें आप बेसिकली वो क्या करता है कि यहाँ से चलेगा फिर यहाँ तक पहुंच जाएगा, लेकिन वो प्रॉब्लम क्या है कि वो मेथड आपका बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है और आपके प्रोसेस को बहुत स्लो कर देता है। ओके, सो और दूसरा तरीका ये है कि हम हमेशा एरर का वो फंक्शन यूज करें जिसमें कि सिर्फ एक मिनिमम हो, लोकल मिनिमम हो ही ना। सो वी वांट अ फंक्शन ऑफ द एरर इन विच देयर इज ओनली अ single minimum, there is no local minimum. So throughout the machine learning algorithm, data science algorithm, we will always try to find out the kind of error function which is having only a single minimum. If it is having the local minimum, then we will convert it and we will try to find out the another error function which is having the local, which is having a global minimum, no local minimum. So that is very important concept. सो इसलिए आप देखोगे तो मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम में, डाटा साइंस सारी एल्गोरिथम में आप एरर फंक्शन वो चूज करते हो जिसमें कि लोकल मिनिमम ना हो, अदरवाइज विल फेस द सेम इशू। ओके फाइन, इसलिए आप यहाँ पर भी देखो तो हमने बेसिकली आपका एमएससी यूज किया था, मीन स्क्वायर्ड एरर, और मीन स्क्वायर्ड एरर का जो ग्राफ बनता है आपका मोरलेस ऐसे ही दिखाई देता है, उसमें सिंगल ग्लोबल मिनिमम होता है, ओके, इसमें लोकल मिनिमम नहीं होता है। ओके, अब हम आते हैं दूसरी चीज पे, एमएई। अगर आपको याद होगा तो हमने कहा था कि हम एमएई मेरा क्या था, मीन एब्सोल्यूट एरर। व्हाट वाज माय मीन एब्सोल्यूट एरर? मीन एब्सोल्यूट एरर वाज माय दिस इज वाई एक्चुअल माइनस वाई प्रेडिक्टेड का मैंने मोड ले लिया था, राइट? और एमएससी में मैं क्या कर रहा था, इसका वाई एक्चुअल माइनस वाई प्रेडिक्टेड का स्क्वायर कर रहा था। ओके, और एवरीथिंग दोनों के लिए सेम था, आई इक्वल टू 1 to m डिवाइड बाई 2m। सो मैंने बोला था कि हम एमए यूज नहीं करते हैं, जनरली हम एमएससी यूज करते हैं। तो उसका एक तो रीजन ये है बेसिकली, क्योंकि जब मैं एरर फंक्शन का मैं क्या निकालता हूँ, हमेशा डी बाई डी एम निकालता हूँ। तो ये आपका एमए का ग्राफ होता है, ये आपका एमएससी का ग्राफ है। तो एक तो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है जहाँ पे मेरे एरर मिनिमम है एमए के लिए, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मेरा बेसिकली एरर, ये जो मेरा डी बाई डी एम होता है मेरा अनडिफाइन हो जाता है। ओके, क्योंकि यहाँ पे रेट ऑफ चेंज मेरा कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर बेसिकली क्या रेट ऑफ चेंज मेरा अनडिफाइन हो जाता है। तो एक तो ये प्रॉब्लम है एमए यूज करने के लिए। कोई बात नहीं, इसको मैं हैंडल कर लेता हूँ कोड में, आई कैन हैंडल दिस। दूसरी प्रॉब्लम क्या आती है, दूसरी प्रॉब्लम ये आती है कि दिस इज नॉट द, ये मुझे अच्छे रिजल्ट नहीं देता। क्यों नहीं देता है?
क्योंकि अगर मैं एमई से कंपेयर करूं तो हमने देखा था कि बिकॉज जो स्लोप है इस वाले केस में आप स्लोप देखोगे तो ऑटोमेटिकली स्लोप आपका रिड्यूस हो रहा है, तो आपका ऑन एन एवरेज आपकी जो लर्निंग है वो आपकी स्लो होती चली जाती है, आपके स्टेप्स स्लो होते चले जाते हैं, तो बेसिकली आप मोर और लेस एरर के बहुत पास कन्वर्ज कर जाते हो। ओके, लेकिन इस केस में अगर आप देखोगे तो मोर आपके ईच एंड एवरी पॉइंट पे आपका जो रेट ऑफ चेंज है वो सेम है, क्योंकि सेम स्लोप है, यहाँ पे आपका स्लोप चेंज हो रहा है। तो ये बेसिकली मुझको जब मैं ग्रेडिएंट डिसेंट मेथड अप्रोच यूज करता हूँ तो ये एरर के पास मेरा बहुत अच्छे से कन्वर्ज होता है, क्योंकि मैं उस टेक्निक को यूज कर सकता हूँ कि अपना प्रोसेस मेरा स्लो होता चला जाता है वो। लेकिन इस केस में रेट ऑफ चेंज मेरा सेम है, तो सेम तरीके से कन्वर्ज हो जाता है, तो इसके आसपास नहीं कन्वर्ज होता, ये आसपास यहाँ पे कहीं दूर कन्वर्ज होता है ये। ओके, क्योंकि रेट ऑफ चेंज वाले इस टर्म को मैं यूज नहीं कर पाता हूँ। सो दैट इज वाई एमएई मेरा ज्यादा फास्ट कन्वर्ज होता है। ओके, और ज्यादा अच्छे रिजल्ट देता है, ये आपका फास्ट कन्वर्ज होगा लेकिन आपके बेटर रिजल्ट देगा। तो दैट इज वाई वी जनरली डोंट यूज एमएई, वी गो फॉर द एमएसी, क्योंकि इसके रिजल्ट एमए के कंपैरिजन में आपके बेटर रिजल्ट आते हैं। ओके, एंड रीजन उसका सिंपल है, क्योंकि आप देखोगे तो इसमें आपका रेट ऑफ चेंज डी बाई डी एम कॉन्स्टेंट है, तो सेम तरीके से आपका वो जाएगा ईच एंड एवरी स्टेप पे, वो सेम ट्रेवल करेगा। यहाँ पर ईच एंड एवरी स्टेप पे आप देखोगे तो पहले बड़े स्टेप ले रहा है, फिर छोटे 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 लेता 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 आपके एरर के आसपास आता है, बहुत बेटर तरीके से एरर के पास कन्वर्ट हो जाता है। इसमें कोई चीज जो समझ में नहीं आई है एमएससी और एमए के ग्राफ में? गुड। सो अब मेरे पास दो फॉर्मूले हैं, एमए का फॉर्मूला ये है जहाँ पे मैं एब्सोल्यूट टर्म यूज कर रहा हूँ, और एमएससी में मैं इसका स्क्वायर ले रहा हूँ। तो कोई ऐसी कंडीशन हो सकती है जहाँ पर मेरे लिए एमई एमई ठीक है, मेरा एमई मेरा कॉस्ट इफेक्टिव है, थोड़े बेटर रिजल्ट भी नहीं देता है, ठीक है, लेकिन ऐसी कोई कंडीशन हो सकती है जहाँ मेरे लिए एमई ज्यादा यूजफुल है एज कम्पेयर टू एमएससी? कैन यू थिंक ऑफ दैट? ऐसा कोई सिनेरियो आपको याद आ रहा हो, आपको फॉर्मूलों को देख के आपको लग रहा है कि जहाँ एमई मेरे लिए ज्यादा यूजफुल होगा और एमएससी में मेरा एमएससी से बेटर रिजल्ट मेरे एमई में आएंगे? Okay, I give you the hint. Let's say I just made a graph. Okay, let's say I make a graph here. Okay, this is my area. This is my price. Let's say more or less मेरे सारे डेटा हैं वो मेरे सेम पैटर्न को फॉलो करते हैं, ठीक है, more or less आपके डेटा इस तरीके से है। लेट्स आपके सिस्टम में कुछ आउटलायर्स हैं, एक आउटलायर्स मेरा यहाँ पर है, एक आउटलायर्स लेट्स से मेरा यहाँ पर से, सिस्टम का आउटलायर्स है। ओके, इस केस में ओके लेट्स से मैंने ये लाइन मैंने बनाई है। अब आप देखोगे नॉर्मल पैटर्न लाइन का ये है कि मोर लेस जो आपकी लाइन बननी चाहिए वो बेसिकली यहाँ बननी चाहिए, लेकिन जब मैं इस लाइन के थ्रू सिस्टम की एरर निकालने के लिए जाऊंगा तो आप देखोगे सारे पॉइंट ऑलरेडी में इस लाइन के नजदीक हैं, तो एरर बहुत सिस्टम ही कम है, लेकिन इन पॉइंट की एरर कितनी है? लेट्स से मैं इसको E1 बोल देता हूँ और इसको E2 बोल देता हूँ, तो इन दोनों की एरर ही टोटल बाकी जो सारे पॉइंट्स हैं उनको मिला के उनसे भी ज्यादा है। यानी कि जब मैं इसको एरर को जब लाइन को मैं फिट करने के लिए जाऊंगा तो बिकॉज ऑफ ओनली दिस 2 पॉइंट्स मेरी जो लाइन है, मेरी लाइन ये लाइन नहीं बन के मेरी ये वाली लाइन बन जाएगी मोर और लेस ये वाली, क्योंकि मेरे आउटलायर्स ने मेरी लाइन को बहुत ज्यादा इफेक्ट कर दिया, क्योंकि मेरे आउटलायर्स लाइन से बहुत दूर थे। तो वो क्या करेगा, उसको तो ऑन एन एवरेज एरर कम करनी है, तो ऑन एन एवरेज एरर कहाँ कम होगी, जब वो इसके आउटलायर्स के पास वाली लाइन बना देगा। तो आप देखोगे तो बेसिकली मेरा मॉडल सिर्फ आउटलायर्स की वजह से इतना ज्यादा खराब मॉडल मैंने बना दिया है जो कि नॉर्मल पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहे हैं। सो जब भी आपके सिस्टम में आउटलायर्स होंगे देन यू हैव ए प्रॉब्लम। और अगर मेरा एमई है एमई क्या कर रहा है, मेरा एमई मेरा निकालता है एब्सोल्यूट एरर, यानी कि मुझे सिर्फ E1 देगा और E2 देगा। और अगर मैं मीन स्क्वायर एरर करता हूँ तो क्या कर देता है, इन दोनों का स्क्वायर कर देता है, E1 का भी स्क्वायर कर देगा और E2 का भी स्क्वायर कर देगा। बिकॉज नाउ माई कंडीशन ऑल वर्स्ट, पहले ये 4 था, लेट से ये मेरा 6 था, तो पहले मेरी एरर आई थी 4 और 6, अब मेरा कितने कर देगा 16 प्लस 36। तो मेरी बेसिकली जो कंडीशन मुझे पहले मेरी बहुत प्रॉब्लमेटिक थी वो मेरी प्रॉब्लमेटिक और ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि उसने एरर को स्क्वायर कर दिया। ओके, तो क्या करेगा, मेरी लाइन को
चेंज करने में इन एरर का वेटेज अब क्या होगा, स्क्वायर वेटेज हो गया, तो और ज्यादा इफेक्ट करेगा उसको। ओके तो जब भी आपके सिस्टम में आउटलायर्स होते हैं, when your data is having the outliers, so in that case MA is will give you the better result, क्योंकि आपके आउटलायर्स का वेटेज कम रहता है। लेकिन अगर आपके सिस्टम में आउटलायर्स है तो MSC में वो एरर आपकी स्क्वायर हो जाती है, तो आपका वेटेज और ज्यादा बढ़ जाता है, तो आपको जो मॉडल बना के देगा वो MSC में, वो आपको और वर्स्ट मॉडल बना के देगा। So when in your system you have the outliers, go for MAE. If you don't have the outliers या कम है बहुत outliers, then go for the MSE. Okay, this is the best practice. So, And okay, when starting to train a model, hmm, we have all of the data available. yes, exactly. Okay, for the predictors as well as results for those predictors. Yes, right. So why don't we identify the outliers during data cleanup and then remove them there and then? Yes, देखो ये एंटायरली डिपेंड करता है कि बेसिकली लेट्स से सबसे पहले आप क्या करोगे, आप आउटलायर्स को आइडेंटिफाई करोगे, आप उसके स्कैटर्ड ग्राफ बनाओगे या और भी बहुत सारे मेथड्स, आप जी स्कोर देखोगे या बेसिकली आप स्टैंडर्ड डेविएशन देखोगे। उसके हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि सिस्टम में कौन कौन से डेटा पॉइंट्स जो कि आपके सिस्टम में आउटलायर्स हैं। ठीक है, देन यू हैव टू हैंडल योर आउटलायर्स, क्योंकि आपके आउटलायर्स पे अगर आप मॉडल बनाओगे, जाहिर सी बात है आपके कॉमन पैटर्न को आपको इन्फ्लुएंस करेंगे, आपका मॉडल जो अच्छा नहीं बनेगा ऑन एन एवरेज, क्योंकि वो आउटलायर्स की वजह से इफेक्ट हो जाएगा। तो या तो आप आउटलायर्स को रिमूव करो। अब प्रॉब्लम ये आती है कि आप बाकी आप डाटा में आप आउटलायर्स को रिमूव करना चाहते हो कि नहीं चाहते हो, या दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मॉडल, तो आपको मॉडल में उसको इंक्लूड करना ही करना है। अब लेट्स से यूज अब दैट डिसीजन यू कैन नॉट टेक, यू हैव टू सिट विद द बिजनेस कि ये जो डेटा रिकॉर्ड है एक्चुअल में ये डेटा रिकॉर्ड है या बाय चांस ये आपका ऐसा कोई डाटा रिकॉर्ड है जनरली नहीं आता है एंड वी कैन इग्नोर इट। और आपका बिजनेस कहता है कि नहीं दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत फ्रिक्वेंटली आते हैं, तो वी कैन नॉट इग्नोर इट, इसको हमें अपने डाटा मॉडल में इसको इंक्लूड करना ही करना है। सो देन यू कैन नॉट रिमूव इट। अगर आपके आउटलायर सिर्फ आपके 0.5% या 0.2% है, देन यू कैन टेक ए डिसीजन कि इनको हटा लो। लेकिन आपके आउटलायर से लेट्स आपके 10 और 15% है, उस केस में बहुत बड़ा चंक हो जाता है। लेट्स आपके पास 10 मिलियन रिकॉर्ड्स हैं, उसमें से आपके 10% आउटलायर्स, तो आपके 1 मिलियन तो आपके आउटलायर्स हो गए, तो आप सबको नहीं हटा सकते हो। सो देन यू हैव टू गो फॉर ए डिफरेंट मेथोडोलॉजी कि आप उसको कैसे हैंडल करोगे। ठीक है ना, या तो आप आउटलायर्स के लिए अलग से मॉडल प्रिपेयर करोगे, तो जब भी आपके पास जब आपके पास जब भी दो मॉडल बनाओगे, एक नॉर्मल डाटा के लिए एक आउटलायर्स के लिए, और जब भी प्रोडक्शन में आपके पास डेटा आएगा तो आप दोनों मॉडल से उसको प्रेडिक्शन कराओगे। ओके, सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू वर्क। सो डिफरेंट अप्रोच होती है कि आप उसको कैसे हैंडल करोगे। ओके, देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल, इट एंटायरली डिपेंड ऑन योर बिजनेस केस, यूज केस एंड योर बिजनेस कि आपको कैसे हैंडल करना है उसको। Okay, thanks, sir. ओके, एनी अदर क्वेरी? ओके, सो लेट्स गो बैक टू द स्लाइड। सो ये आपकी स्लाइड कवर हो गई, ये आपकी कवर हो गई, ये आपकी। सो MSC होता है, एक MEB होता है, एक आपका हुबे लॉस भी होता है। अगर आपको हुबे लॉस क्या करता है, बेसिकली आपका हुबे लॉस, दिस इज अगेन एरर फंक्शन, आप इसको भी यूज कर सकते हो। ओके, हुबे लॉस क्या करता है, दोनों को बेसिकली दोनों को यूज कर लेता है। ये क्या करता है, जब आपकी ये क्या करता है कि जैसे जैसे आप जीरो के आसपास पहुंचते जाओगे, जैसे आप जीरो के पास पहुंचोगे तो ये बिहेव करेगा आपका MSC की तरह, और जैसे आप जीरो से दूर होते चले जाओगे मतलब एरर से, तो आपके MA की तरह बिहेव करेगा। तो ये हुबे लॉस क्या करता है, दोनों को यूज कर लेता है। ओके, ये आपका डेल्टा आपका हाइपर पैरामीटर होता है। हाइपर पैरामीटर आपका ये बताता है कि बेसिकली आप उसको MA ज्यादा बनाना चाहते हो कि MSC ज्यादा बनाना चाहते हो। ओके, तो ये आपका कंट्रोलिंग फैक्टर होता है। अगर आप उसको लार्ज लोगे, ओके, तो इट बिकम एज ए MSC, अगर इसको छोटा लोगे तो इट विल बिहेव लाइक ए MAE। ओके, सो दिस इज अ कंट्रोलिंग फैक्टर। सो लेकिन हुबे इज ऑलवेज अ बेटर चॉइस, क्योंकि आपके मोरलेस दोनों MAE और MSC दोनों की प्रॉपर्टीज के साथ काम करता है। ओके, सो इन केस ऑफ यू आर हैविंग द आउटलायर्स, तो आप हुबे यूज करोगे तो आपको ज्यादा अच्छा रिजल्ट देगा। ओके ना, अगर आपके उसमें मिक्सअप है, आउटलायर्स भी हैं, दोनों हैं, तो ऑलवेज गो फॉर द हुबे। हुबे आपको कि दोनों की प्रॉपर्टीज को कंबाइन कर देता है, तो इट विल ऑलवेज give you the better results. Okay, so Hubei loss is also there. Then we go for okay, when you have build up the model, आपने मॉडल बना के प्रिपेयर कर लिया है, ठीक है। अब आपके पास कोई मेट्रिक होना चाहिए जिसके बेसिस आप बता पाओ कि आपने जो मॉडल बनाया है वो अच्छा है कि खराब है, राइट। यू शुड हैव सम मेट्रिक।
तो मीट्रिक होता है यहाँ पर आपका आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर मीट्रिक आपको ये बताता है कि बेसिकली आपका मॉडल कितना अच्छा है या कितना खराब है, या ओके आप इसको यूज कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। तो डिग्री जो आर स्क्वायर मॉडल होता है, आर स्क्वायर मॉडल मुझे बताता है इट इज अ कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन। ये आपको बताता है बेसिकली आपका मॉडल जो आपने मॉडल बनाया वो बेस मॉडल से कितना अच्छा काम कर रहा है। बेस मॉडल हम मानते हैं वो मॉडल है जिसमें कि आप हर चीज को मीन प्रेडिक्ट कर देते हो। लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरे पास डेटा आया, बहुत सारा डेटा है, मुझे हाउस का प्राइस प्रेडिक्ट करना है। तो मैं ऑन एन एवरेज में एक नॉर्मल इंसान हूँ, ज्यादा कैलकुलेशन नहीं कर सकता। मैं क्या करूंगा, सारे हाउस प्राइस का एवरेज निकाल लूंगा और जो भी नया डाटा आएगा उसके लिए मैं उस एवरेज को प्रेडिक्ट कर दूंगा। तो मोरलेस तो सही काम करेगा, मतलब बहुत बुरा काम नहीं है उसका, क्योंकि मैं एवरेज से प्रेडिक्ट कर रहा हूँ उसके मीन से। सो मेरा बेस मॉडल जो होता है वो हमेशा मेरा मीन प्रेडिक्ट करके देता है। ओके, सो जो मेरा आर स्क्वायर होता है वो आर स्क्वायर मुझे ये बताता है कि मेरे जो नया मॉडल मैंने बनाया है वो मीन वाले मॉडल से, यानी जो मेरा बेस मॉडल है उसके कंपैरिजन में कितना अच्छा काम कर रहा है, उसके कंपैरिजन में कितना बुरा काम कर रहा है। क्योंकि मैं बेस मॉडल मान के चलता हूँ अपने मीन मॉडल को, जो हमेशा मीन को प्रेडिक्ट करता है। सो दिस इज योर मॉडल जो आपने बनाया है एंड दिस इज योर बेस मॉडल। उसका ये क्या करता है, आपको कंपैरिजन निकाल के देता है कि बेसिकली मीन मॉडल से कितना वेरी कर रहा है। एमएससी मॉडल, बेस मॉडल, उसको आप 1 से माइनस कर देते हो। सो फाइनली यू गेट द आर स्क्वायर। इसकी वैल्यू बेसिकली आपके वेरी करती है आपकी -∞ to 1। ओके, अगर आपका स्कोर 1 आ रहा है इसका मतलब यू हैव मेक द परफेक्ट मॉडल, आपका मॉडल परफेक्टली काम कर रहा है सिस्टम में, मोर लेस आपकी एरर जो है वो 0 के बराबर है। ओके, अगर आपका मॉडल 0 के पास आता चला जाता है, ठीक है, इसका मतलब आपका मॉडल मोर लेस आपका खराब काम कर रहा है। अगर आपका आर स्क्वायर की वैल्यू 0 आ जाती है, इसका मतलब आपका मॉडल इज जस्ट बिहेविंग लाइक अ बेस मॉडल, यानी कि हर चीज को मीन प्रेडिक्ट कर रहा है। ओके, अगर आपकी आर स्क्वायर की वैल्यू 0 से भी कम आ जाती है, इसका मतलब आपने इतना खराब मॉडल बनाया है कि वो बेस मॉडल से भी, मतलब कोई आदमी तुक्का भी मारे अगर एवरेज के हिसाब से, तो उससे भी खराब काम कर रहा है। ओके, सो जनरली इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में रहती है। अगर आपने बहुत ही खराब मॉडल बनाया है तो एक्सेप्शनल केस में 0 से कम जाती है, अदरवाइज 0 से 1 के बीच में होती है। अगर आपने खराब तो वो निगेटिव में भी हो सकती है। तो वैल्यू इसकी -∞ to 1 तक वेरी करती है। 1 इज द बेस्ट मॉडल, परफेक्ट मॉडल, और उससे कम होती चली जाएगी तो उसकी स्कोर हम उतने उसका कम मानते जाएंगे। तो लेट्स से अगर आपके आर स्क्वायर की वैल्यू अगर लेट्स से आपकी 0.6 आ गई, तो हम जनरली ये मान के चलते हैं कि आपका मॉडल एक्चुअली 60% एक्यूरेसी पे काम कर रहा है। अगर 0.7 इसका मतलब आपका मॉडल 70% एक्यूरेसी पे काम कर रहा है, और 1 मतलब आपका मॉडल 100% एक्यूरेसी पे काम कर रहा है। तो दिस इज हाउ वी इवेल्युएट द आर स्क्वायर मेट्रिक। ओके, तो आप हमेशा यू विल ऑलवेज ट्राई योर बेस्ट टू रीच द मैक्सिमम लेवल। आप 1 के कितना आसपास पहुंच सकते हो, 1 इज इम्पॉसिबल, बट यू विल ट्राई टू अचीव एटलीस्ट नियर टू 1, दैट इज 0.9, 0.8, 0.7, whatever जो भी आप अचीव कर सकते हो, बट यू ऑलवेज ट्राई टू गो नियर टू 1 because that will your right side to reach the optimum model. Okay, so this we have done this। अभी इसको छोड़ देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है, इसको भी छोड़ देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। ओके, नाउ गो फॉर द पॉलिनोमियल रिग्रेशन। अच्छा, अभी तक जो हमने किया उसमें कितना कंफ्यूजन है और कितनी चीज समझ में आ गई है? अभी तक कोई क्वेरी है किसी की? ओके, सो वेरी गुड। सो अभी तक हम क्या कर रहे थे, हम एक मॉडल बना रहे थे और हमारा जो मॉडल था हम उसको लीनियर मान के चल रहे थे। ओके, लेकिन रियल जरूरी नहीं है कि आपको जो रियल टाइम डेटा आए वो लीनियर रिग्रेशन को फॉलो करे। जरूरी नहीं कि आप हमेशा जो आपका जो भी आपका रिलेशनशिप जो बिल्ड हो रहा है वो हमेशा लीनियर हो, जरूरी नहीं है, क्योंकि रियल टाइम डेटा है तो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम 99.9% वो आपका लीनियर रिलेशनशिप को फॉलो नहीं करता। लेट्स टेक दिस एग्जांपल। ये मेरा डेटा मुझे ऑलरेडी दिया हुआ है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक ये है, एक ये है। अगर मैं लीनियर रिग्रेशन वाली लाइन बनाता हूँ तो लेट्स से दैट इज द लीनियर रिग्रेशन मॉडल। उस केस में आप देखोगे तो बेसिकली अभी भी सिस्टम में बहुत एरर है। अगर मैं इसको थोड़ी सी, अगर मैं लाइन को थोड़ा सा कर्व कर दूं, लेट्स से दिस इज माय ब्लू लाइन, ये पॉइंट्स को मोर लेस लाइन के कंपेरिजन में ज्यादा बेटर तरीके से कवर कर रही है। इसमें आपके सिस्टम की एरर मोर और लेस लीनियर रिग्रेशन कंपेरेटिवली आपकी एरर कम है। सो दिस इज अ बेटर मॉडल देन द लीनियर मॉडल। सो दिस इज कॉल्ड योर पॉलिनोमियल रिग्रेशन। जब आप लाइन को बेसिकली क्या करते हो, कर्व कर देते हो।
सो आप जैसे आप क्या करोगे, लीनियर रिग्रेशन आपका मॉडल था जिसमें आप लाइन की इक्वेशन बनाते सारी, आपकी जो रिलेशनशिप थी वो फर्स्ट डिग्री की होती थी। यहाँ पे आप क्या करोगे, रिलेशनशिप को सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, फोर्थ डिग्री तक लेके जाते हो। ओके, उसमें क्या होता है कि आपकी सारी लाइन से आपकी लाइन या प्लेन या हाइपरप्लेन जो भी होता है आपका कर्व होता चला जाता है। तो जैसे आपका कर्व होगा, जितना ज्यादा कर्व होगा उतना लाइन के आसपास पहुंचता चला जाएगा, आपकी सिस्टम क्या है रिड्यूस होते चले जाएगी। ओके, लेट से हो सकता है कि आपने फिर डिग्री बहुत ज्यादा करी, तो उस केस में ये केस ये भी हो सकता है कि वो ऐसा कुछ बन जाए अजीब सा। फिर आपके अगर आपने डिग्री बहुत ज्यादा बढ़ा दी है तो भी सिस्टम की एरर बढ़ जाएगी। सो यू हैव टू फाइंड आउट द बेस्ट डिग्री, कि कौन सी डिग्री पे जाके आपको बेस्ट एरर आ रहा। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले उसकी आप पहले लीनियर रिग्रेशन बनाओगे फर्स्ट डिग्री का, आप देखोगे एरर कितनी आ रही है, यानी कि मॉडल की एक्यूरेसी कितनी आ रही है। तो लेट से आपकी मॉडल की एक्यूरेसी लेट से 0.6 आ रही है, आपने इसको सेकंड डिग्री का कर दिया, लेट से अब उसकी 0.7 आ रही है, लेट से थर्ड डिग्री किया आपका, लेट से 0.85 पहुंच गई। लेट से आपने जैसे आपने इसको फोर्थ डिग्री का किया है, ये फिर से आपकी 55% रह गई। इसका मतलब थर्ड डिग्री पे अच्छा काम करता है, फोर्थ डिग्री पे उसने लाइन इतनी ज्यादा कर्व कर दी है कि फिर से आपका स्कोर कम हो गया, यानी कि आपकी थर्ड डिग्री इज द ऑप्टिमम वैल्यू। यानी थर्ड डिग्री पे आपका मॉडल सबसे अच्छे तरीके से काम कर रहा है, तो थर्ड डिग्री वाले को आप फाइनल कर दोगे। ओके, सो दैट इज कॉल्ड द पॉलिनॉमियल रिग्रेशन। उसमें आप उसकी डिग्री बढ़ा देते हो, लाइन को कर्व कर देते हो, और इससे कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। पॉलिनॉमियल रिग्रेशन इज द एक्सटेंशन ऑफ द लीनियर रिग्रेशन, जहाँ पे आप लाइन को कर्व कर देते हो। ओके, ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं, ये हम सब देख चुके हैं, इसमें कुछ नया नहीं है। अब कंसेप्ट आता है ओवरफिटिंग का और अंडरफिटिंग का। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ये आपकी हर जगह यूज होगा। ये अंडरफिटिंग का मतलब कि आप मॉडल बहुत सिंपल बना रहे हो। ओके, द मॉडल यू हैव क्रिएटेड इज वेरी सिंपल, इतना ज्यादा सिंपल है कि बेसिकली वो डेटा में से पैटर्न फाइंड आउट ही नहीं कर पा रहा है। ओके, अगर सिस्टम में से पैटर्न फाइंड आउट नहीं कर पाएगा डाटा में, तो हमेशा आपकी एरर हमेशा हायर साइड पे रहेगी और आपका स्कोर हमेशा लोअर साइड पे रहेगा। ओके, सो दैट इज कॉल्ड योर मॉडल इज वेरी सिंपल एंड यू आर अंडर फिटिंग, यानी डाटा को फिट ही नहीं कर पा रहा, आपका मॉडल डाटा को फिट नहीं कर पा रहा है, इसका दैट इज अंडर फिटिंग। लेट्स से दिस इज द काइंड ऑफ डाटा दैट इज गिवन टू मी। ओके, एंड लेट्स से आई हैव मेक द लीनियर मॉडल ऑफ द फर्स्ट डिग्री। इस केस में आप देखोगे तो ये लाइन में अभी आपके सिस्टम बहुत एरर है और इसको रिलेशनशिप को सही से रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा है। ओके, अब मैंने क्या कर दिया, इसको मैंने डिग्री लेट से 2 कर दी। उस केस में नाउ इट इज गिविंग द बेटर रिजल्ट। आप देखोगे तो ये बेटर तरीके से पैटर्न को कैप्चर कर पा रहा है। सिस्टम की एरर मोर लेस आपकी कम हो गई है। पहले यहाँ पे सिस्टम की एरर आपकी 0.6 थी, अब सॉरी स्कोर आपका 0.6 था, यहाँ पे आपको 0.85 आ गया। ये वो केस है जब आपने सिस्टम की एरर बेस आपने डिग्री आपने लेट से 4 कर दी, इस लाइन को और ज्यादा कर्व कर दिया। तो उस केस में ये क्या करेगा, बेसिकली ट्राई करेगा ईच एंड एवरी डाटा पॉइंट्स के आसपास से होकर जाने की। तो आपका सिस्टम की आप अगर यहाँ पे एक्यूरेसी निकालोगे तो आपकी एक्यूरेसी क्या हो जाएगी, यहाँ पे मोर लेस आपकी एक्यूरेसी यहाँ पे पहुंच जाएगी 0.95। तो इस केस में अगर आप देखोगे तो लाइन को मोरलेस सारे पॉइंट्स के आसपास से होके जा रहा है। ठीक है, तो ट्रेनिंग डाटा पर अगर आप देखोगे जिसके ऊपर आप मॉडल को ट्रेन करोगे तो आपकी एक्यूरेसी हमेशा हायर साइड पे आएगी, आपकी एक्यूरेसी हमेशा हायर साइड पे आएगी। लेकिन जैसे ही आप इसको टेस्ट डाटा पे टेस्ट करोगे, मॉडल आपका बन के तैयार हो गया, अब आप इसको टेस्ट डाटा पे टेस्ट कर रहे हो, उस केस में क्योंकि आपका डेटा ट्रेनिंग डाटा में तो उसने साइड पैटर्न कैप्चर कर लिए हैं, और लेकिन उसने क्या किया है, उसने मॉडल को ट्रेनिंग डाटा के ऊपर ओवरफिट कर दिया है। वो गिवन डेटा के हिसाब से जो भी आपका डेटा है वही प्रेडिक्ट करना चाहता है, उस हिसाब से वो सब कुछ मॉडल को उसने क्या कर दिया, ओवरफिट कर दिया। लेकिन जैसे नया डाटा आएगा जो उसके लिए अनसीन है, उस केस में सिस्टम की एरर ऑलरेडी आपकी इंक्रीज हो जाएगी। टेस्ट ट्रेनिंग पे आपके इसको 95 आ रहा है, टेस्ट पे आपका स्कोर कम कम होकर आपको हो सकता है 80% रह जाए, या हो सकता है आपका 75% रह जाए, क्योंकि बेसिकली आपने मॉडल को इतना ज्यादा ओवरफिट कर दिया ट्रेनिंग डाटा पे कि आपका मॉडल जनरलाइज मॉडल नहीं है। वो ट्रेनिंग पे तो बहुत अच्छा स्कोर देगा, लेकिन टेस्टिंग पे आती है उसका स्कोर कम हो जाएगा जो उसका अनसेन डेटा है। तो उसको बोलते हैं ओवरफिटिंग, यानी कि आपने मॉडल क्या कर दिया, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना दिया है, एंड इट इज ओवरफिटिंग ऑन द गिवन डेटा, एंड इट इज नॉट अ जनरलाइज मॉडल। तो मशीन लर्निंग एंड डाटा साइंस में आप यू ऑलवेज स्ट्राइव फॉर द जनरलाइज मॉडल। क्योंकि अल्टीमेटली मैं जो भी मॉडल बना रहा हूँ मुझे उसको अनसीन मॉडल को, उसको अनसीन डेटा मुझे उसको यूज करना है। तो मुझे मॉडल हमेशा जनरलाइज चाहिए जो ट्रेनिंग डाटा और टेस्ट डाटा पर सेम तरीके से बिहेव करे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ट्रेनिंग डाटा बहुत अच्छा काम करा और जैसे अनसीन डेटा आता है उसका स्कोर कम हो जाता है। सो आई ऑलवेज गो फॉर द जनरलाइज मॉडल। ओके, सो आई ऑलवेज टेक द ट्रेड ऑफ बिटवीन द ओवरफिटिंग एंड द अंडरफिटिंग।
ओवर फिटिंग लोगे तो स्कोर कम आएगा, अंडर फिटिंग लोगे तो स्कोर ज्यादा आएगा, लेकिन टेस्ट आपका कम हो जाएगा। तो अगर मेरा मॉडल अंडर फिट है तो आपका ट्रेनिंग और टेस्ट दोनों पे स्कोर आपका कम रहेगा। लेट्स से इस पे आपका ट्रेनिंग में आपका 0.6 आ रहा है, यहाँ पे और कम हो गया, लेट्स से आपका 0.59 आ गया। अगर आपका ओवर फिट है तो आपका ट्रेनिंग में आपका स्कोर लेट्स से 0.98 आ गया और यहाँ पे कम हो गया आपका 0.75 आ गया। और आपका अगर बिल्कुल राइट फिट है तो आपका ट्रेनिंग पे आएगा लेट्स से 0.8 और यहाँ पे आ जाएगा लेट्स से आपका 0.79। तो दिस इज मोर और लेस आपका सेम स्कोर देगा। तो आई ऑलवेज गो फॉर द जनरलाइज मॉडल जो कि आपका ट्रेनिंग और टेस्ट पे सही तरीके से काम करे। आप इसमें स्कोर मेरा ट्रेनिंग पे अच्छा आ रहा है बट आई विल नॉट एक्सेप्ट इट बिकॉज आपका इसका टेस्ट पे स्कोर इसका कम हो गया। तो जैसे प्रेडिक्शन मॉडल प्रेडिक्शन में जाएगा, जब प्रोडक्शन में जाएगा, ये मेरा अच्छे प्रेडिक्शन नहीं देगा, ये मेरा मॉडल अच्छे रिजल्ट देगा ऑन एन एवरेज जनरलाइज मॉडल है मेरा। सो आई ऑलवेज टेक द ट्रेड ऑफ बिटवीन द ओवर फिटिंग एंड अंडर फिटिंग। मेरे को मॉडल बहुत सिंपल भी नहीं रखना है, मुझे मॉडल बहुत कॉम्प्लेक्स भी नहीं बनाना है, मुझे एक ट्रेड ऑफ लेना है अंडर फिटिंग और ओवर फिटिंग के बीच में। ओके, अंडर फिटिंग को आप हाई बायस भी बोलते हो और ओवर फिटिंग को आप हाई वेरिएंस भी बोलते हो। हाई बायस एंड हाई बायस। हाई बायस मींस आपके मॉडल अंडर फिट है, अगर सिस्टम में हाई वेरिएंस है इसका मतलब आपका ओवर फिट है। हाई वेरिएंस का मतलब कि जैसे ट्रेनिंग डाटा आता है उसके रिजल्ट में बहुत वेरिएंस आ जाता है, दैट इज हाई वेरिएंस। बायस मतलब कि आपका डाटा जो है बेसिकली वो ट्रेनिंग डाटा के लिए बहुत बायस्ड है, यानी अपने आपके ट्रेनिंग डाटा के बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। सॉरी, बायस का मतलब बहुत ही, बायस को बोलते हैं कि आपका बहुत ही सिंपलर है, आपने बायस कर दिया अपने को, बहुत सिंपल मॉडल बनाया। सो हाई बायस मींस अंडर फिटिंग और हाई वेरिएंस मींस ओवर फिटिंग। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये सारी टर्मिनोलॉजी आपकी आगे सब इसी टर्म में यूज होंगी। तो जैसे आप अंडर फिटिंग ओवर फिटिंग आपको कोई नई टर्म आती है आपको समझ में आ जाना चाहिए कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ। सो ये आपके टर्म बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज होती हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स। ओके ओके, ये सब हो गया। अरे कहाँ पहुंच गए? सो अभी आप ये लोग बताओ कि अभी कितनी एनर्जी बची है। सो कैन वी कंटिन्यू और कैन वी डू इट टुमारो? आशीष और शमशेर, आप लोगों के पास कल टाइम है क्या? यू हैव टाइम टुमारो? Yeah, it's okay. In can we have a class early in the morning or sometimes or in the evening? Morning, please. मुझे tomorrow I don't have time, sorry. Who is there? किसके पास टाइम नहीं है? सौरभ सुबह मॉर्निंग का स्लॉट नहीं है आपके पास? हाँ मॉर्निंग थोड़ा जाना है। मॉर्निंग जाना है तो व्हेन यू आर अवेलेबल? टुमारो, डे आफ्टर टुमारो? Day after tomorrow on Wednesday I'm fine. Wednesday. So Shamsher, you are okay Yeah. with Wednesday? At what time? Shamsher, what time suits you? In the 9 a.m. evening. इवनिंग मॉर्निंग कोई भी टाइम ले लो जो आप दोनों को सूट करता है। Okay, we will see. विल सी। ओके, Okay, I will talk to Saurabh. Yeah. सो आप दोनों वेडनेसडे की क्लास फिक्स कर लो, दोनों सुबह की या शाम की, जो भी आपको सूट करता है, ठीक है? एंड Okay. दैट इज फॉर यू। और जो बाकी दीपक है और पंकज है एंड विधि, आपको क्योंकि आपकी एक दो क्लासेस आपकी और होनी है, ठीक है ना? देन वेडनेसडे यू विल बी अलाइन विद देम। सो आपका कल कौन सा टाइम सूट करता है दीपक? दीपक और पंकज? Morning, Pankaj here. ओके, मेरा मॉर्निंग का तो नहीं हो पाएगा शायद। मॉर्निंग का या नहीं? मॉर्निंग कितने बजे बोल रहे हैं आप? मॉर्निंग आई एम ओके विद नहीं, 7 मॉर्निंग कितने बजे बोल रहे हैं? 8 am 8 am आई एम ओके विद दैट, सुबह 8 बजे। 8 से 10? 8 to 9 बोल रहे हैं आप? मैं 8 to 10 बोल रहा हूँ। या 8 से 9 भी चलेगा, कोई बात नहीं। हम 1 घंटे क्लास कल कर लेंगे, 1 घंटे क्लास परसों कर लेंगे और वेडनेसडे को देन यू आर कंप्लीटली अलाइन विद द। कल तो एक बार मैं जरूर ट्राई कर सकता हूँ, परसों तो नहीं हो पाएगा। परसों नहीं हो कॉल पाएगा। तो करती है। सो टुमारो 8 नहीं to मतलब 10। कोई बात नहीं। हाँ मतलब इवनिंग में थोड़ा सा बेटर रहेगा। कल का मैं ट्राई कर लेता हूँ, परसों का तो एक्चुअली कॉल कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा।
पंकज आपको कल शाम का टाइम शूट करता है क्या? नहीं अजय, कल से तो ऑफिस स्टार्ट हो जाएगा, तो आई हैव 11:30 to 9 शिफ्ट। ओके, सो ओके, मॉर्निंग का कल का कर लेते हैं, कल का अगर करना या है तो मॉर्निंग 7 to 9 कर लो या 8 to 10 कर लो, दोनों आप लोग डिसाइड कर 8 लो। to 10 will be fine, I guess. सो दीपक आप थोड़ा सा कल एडजस्ट कर लो, अपनी जो आपकी मीटिंग आगे पीछे कर लो। नहीं कल तो कर लूंगा, कल तो कर कल लूंगा। 8 to 10 फाइनल करते हैं, ठीक है ना, आप लोगों के लिए। और आशीष और शमशेर, आप मुझे वेडनेसडे का टाइम बता दो, ठीक है? Okay, Ajay. Yeah. ओके, परफेक्टली फाइन, Okay. ठीक है। Okay. सो डन, वी आर डन। मैं आई विल शेयर दिस रिकॉर्डिंग विद ऑल ऑफ यू, ठीक है? चलो, बाय बाय। Thanks, Ajay. या वेलकम। Thanks.